Om Shanti, Namaste and good evening. ब्रह्मा कुमारीज एजुकेशन विंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस आखिरी सेशन में हमारे साथ फिर से कई डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स रहेंगे जो आज के हमारे थीम पर अपने विचार प्रकट करेंगे। और आज के सेशन की हमारी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज़। कहा जाता है अग्नि चाहे दीपक की हो, चिराग की हो या मोमबत्ती की हो, उसका दो ही कार्य है, जलना या प्रकाश देना। लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। वही लॉ कि मनुष्य के जीवन को शांत कर सकती है और वही लॉ अंधकार को दूर कर सारे समाज में रोशनी कर सकती है, हर एक के जीवन को रोशन कर सकती है। लेकिन ये निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। उसी तरह हमारे पास भी एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, वो है हमारे विचारों की। हमारा सोच हमको सुख भी दे सकता है और हमारी सोच हमको दुख भी दे सकती है। हमारी सोच से हम किसी भी सिचुएशन को कैलामिटी बना सकते हैं और अपनी ही सोच से हम किसी भी परिस्थिति को, किसी भी सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी, मिरेकल या एक गिफ्ट बना सकते हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रदर ईवी गिरीश, जो कॉरपोरेट ट्रेनर हैं और मोटिवेटर भी हैं और सीनियर राजयोग शिक्षक हैं। आइए उनसे सुनते हैं। Om Shanti, Namaskar. Welcome to this session on converting challenges into opportunities organized by the Education Wing of the Raj Yoga Education and Research Foundation. Welcome to this International Education e-conference with the canopy theme titled as Holistic Education for Excellence in Life. Friends, challenges are inevitable part of human life. We all face challenges of different nature. Challenges from people. It could be a challenging situation or a challenging time. And when we face these challenges on a continuous basis, हमें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ये जो challenges हैं या फिर जीवन है, ये कभी कभी अनफेयर है मेरे साथ या अनजस्ट है मेरे साथ या फिर बहुत डिवास्टेटिंग है एट टाइम्स और हम उससे उभर नहीं पाते। और यही चैलेंजेस हमारे जीवन में रोड ब्लॉक की तरह हमारे जीवन को रोक देता है। कुछ लोग इस चैलेंजेस से आसानी से उभर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग उससे सकम हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं, मन से हार जाते हैं, हौसले टूट जाते हैं, अंदर का जो आत्मविश्वास है वो बिखर जाता है। I mean, they lose their inner confidence. And if you look at life, you might have experienced the same challenging situation for two different people. एक is very easily able to overcome it, but for the other person, it is very crippling, it is very devastating, and it creates a lot of headache, heartache in life. And at times people can go into depression and take extreme steps in life. Friends, it is at these difficult times, if we can develop or if we can resort to our inner resilience or a resilient spirit के आधार से अगर हम इन जीवन के संघर्षों को, challenges को देखें, तो it is pretty easy for us to convert these challenges into possibilities is concerned. लेकिन इसको कैसे करना है, करने की विधि क्या है, करने के लिए ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हम ध्यान रखें तो जिंदगी आसान बन सकती है। लाइफ वुड बी इजी, अचीविंग ग्रोथ कुड बी इजी,
challenges would be there, problems will be there, difficulties would be there. And I think while our education system is helping people earn their livelihood, it helps us to survive with all the luxuries and comforts. Spiritual education, inner education will help us to face whatever challenges that comes in my way for the survival. It adds a lot of value to my life. And I would start today's session on a very beautiful story. You might have heard the story quite many a times. एक बार एक young man, very lean and thin, दुबला पतला, he feels that he wants to get into wrestling, into a sport. वो कुश्ती सीखना चाहता है. वो एक गांव में एक अखाड़े में जाता है जहां एक गुरु बच्चों को कुश्ती सिखाते हैं, रेसलिंग सिखाते हैं. So this young, lean and thin boy approaches the Guruji and says, Guruji, I want to learn wrestling. तो गुरुजी उसको कहता है, No, I can't teach you wrestling because you are not built for wrestling. It would be very difficult for you. You can, take up any other sport. He says, No, I'm passionate about wrestling. आपके बारे में सुना है. I want to learn. But the Guru refuses, and this boy persistently, compels the Guru to teach him wrestling. और गुरु फाइनली agrees, okay fine, तुमको इतना ही दिल से रेसलिंग सीखने की इच्छा है तो भले आ जाओ. और दूसरे दिन जब रेसलिंग सिखाने के समय पर you have to wear a special attire with very minimal clothes, and what the Guru sees in this young boy, he is astonished, आश्चर्यचकित हो जाता है. उस बच्चे को पूछता है कि तुम्हारा तो एक हाथ ही नहीं है, you don't have a hand, how can you learn wrestling without a hand? So he says, Guru, what do? I mean, I met with an accident when I was a small child. I don't have a hand, but I want to learn wrestling. Guru says, so, I can't teach you wrestling without a hand. So he persists, वहां से जाता ही नहीं है, जिद करता है. गुरु फाइनली एडहियर्स, बोलता ओके मैं तुमको रेसलिंग सिखाता हूँ. और फिर कुश्ती की ट्रेनिंग शुरू होती है. एंड दिस यंग मैन फिगर्स आउट, पता चलता है उसको, महसूस करता है कि ये जो गुरु जी है उसको एक ही प्रकार का अटैक सिखा रहा है, नथिंग एल्स. नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, techniques to defend himself, nothing, only one style of attack. He gets this thought as to why is this guru so discriminatory. मेरे एक तो वैसे ही मैं दुबला पतला हूँ, दूसरा मेरा हाथ भी नहीं है, और तीसरा ये गुरु मुझे सिर्फ एक ही दांव सिखा रहा है, बाकी तो मुझे कुछ सिखा ही नहीं रहा है. After 6 months, there is a tournament in a nearby village. And this young boy is astonished to find that the Guru has given his name for the competition. और बाकी सब अच्छे अच्छे कुश्तीबाजों का नाम नहीं दे करके उन्होंने उस यंग मैन का नाम दिया. उसको थोड़ा फिर भी मन में आता है कि मेरा नाम क्यों दिया गुरुजी ने. एक तो मैं दुबला पतला हूँ, दूसरा मेरा एक हाथ नहीं है, तीसरा गुरुजी ने सिर्फ मुझे एक ही अटैक, स्टाइल ऑफ अटैक सिखाया, बाकी तो कुछ सिखाया नहीं है. Why me in the competition? I need to learn more things. But he couldn't muster enough courage to go across to the Guruji and ask him, and he goes for the tournament. First round, very easily he defeats the opponent. Oh my God! On one hand, he's very happy कि अरे मैं जीत गया, लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में ये भी एक प्रश्न उठता है कि मैं जीता तो कैसे जीता? How did I win in life? The second round, the third round, the quarterfinals, the semi-finals, and this boy reaches the finals. To the utter astonishment of the entire world. उसको खुशी भी हो रही होती है कि वो जीत रहा है, लेकिन मन ही मन एक छोटा सा सवाल भी होता है कि मैं जीता तो कैसे जीता. और वो फाइनल मैच का दिन होता है, पूरे के पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं to see a final match between the previous champion, very heavily built, very famous, very known wrestler versus a lean and thin without a hand. Oh, it's going to be a super match. And everybody comes to watch that final match. And the match starts. And within no time, थोड़ी ही देर में
ये दुबला पतला रेसलर उस प्रीवियस चैंपियन को मात दे देता, हरा देता है, और ये दुबला पतला जो व्यक्ति होता है ये जीत जाता है। ओ माय गॉड, ही बिकम्स अ हीरो ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज। ही इज वेरी हैप्पी दैट ही इज अ चैंपियन, but he's still with one question as to how did I win this match. He rushes back to the ashram, touches the feet of the Guruji with a lot of respect, with a lot of gratitude. He says, Guruji, maybe आपके आशीर्वाद और आपके ब्लेसिंग से ही मैं मैच जीता, लेकिन मेरा एक मन में एक प्रश्न है, उसका आप जवाब देंगे? गुरुजी says, I mean, why not? Go ahead. What's your question? तो this young man says, Guruji, एक तो मैं दुबला पतला हूँ, दूसरा मेरा एक हाथ भी नहीं है, तीसरा आपने मुझे वन स्टाइल ऑफ अटैक ही सिखाया। क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड आई विन इन लाइफ? गुरुजी कहता है, यस माय डियर चाइल्ड, आई विल टेल यू हाउ डिड यू विन दिस मैच। इट इज अ फैक्ट दैट यू आर लीन एंड थिन. इट्स अ फैक्ट दैट यू डोंट हैव अ हैंड. It is also a fact that for 6 long months, every day, many times, I made you practice only one style of attack. एक ही चीज को सुबह दोपहर शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात कोई व्यक्ति करे 6 महीने तक, तो 6 महीने के बाद वो उस कार्य में एक्सपर्ट हो जाता है। गुरु said, you become an expert in that style of attack. बोले, yes गुरुजी, but the question is, how did I win this tournament? And the Guru replied, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, this becomes the basis of converting our challenges into opportunities. इसका मतलब ही ये है कि can I convert my weakness into my strength? And the Guru said, when you went to play in the tournament and when you attacked with expertise, with precision, उस अटैक से बचने के लिए आपके प्रतिद्वंदी को, आपके ओपोनेंट को, आपका लेफ्ट हैंड को ग्रैब करना, पकड़ना बहुत जरूरी होता है। एंड दे केप्ट ऑन सर्चिंग योर लेफ्ट हैंड एंड दे कुडंट होल्ड योर लेफ्ट हैंड एंड यू केप्ट अटैकिंग देम एंड दैट इज हाउ यू कुड विन द टूर्नामेंट। एंड द गुरु सेड, I converted your greatest weakness into your greatest strength. जीवन में चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को मैं किस दृष्टिकोण से देख रहा हूं, क्या वो मेरे कमजोरी को, कमी को उभार रहा है, या वो परिस्थिति मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है मेरे अपने कमी कमजोरी को मैं खत्म करके और अपने शक्ति को, विशेषताओं को, गुणों को, अच्छाइयों को और उभार सकूं। और ये तरीका अगर आपने और हमने अपना लिया तो लाइफ वुड बी चैलेंजिंग, बट वी विल डेफिनेटली कन्वर्ट इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड आई विल ग्रो। तो पहला जो तरीका है जिसके कारण आई हैव टू कन्वर्ट द चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज इज, नंबर 1 इज पर्सपेक्टिव, इज दृष्टिकोण। हम किस अंदाज में चीजों को देखते हैं। सो इट इज ब्यूटिफुली सेड, व्हाट यू सी एंड बिलीव एज ट्रुथ may or may not be the truth, but for sure 100% it will be your truth or my truth or somebody's truth. I repeat, what I believe, what I see and what I hear as truth may not be or may be the truth, but for sure 100% it is your truth. And at times this my truth doesn't help me. This my truth doesn't help me make my life easy. It doesn't add value to me. It doesn't make my life smooth. आपको मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज करके बताता हूँ, ठीक है? आप लोग भी करिएगा मेरे साथ। Very beautiful. You have to keep your finger like this. I hope you are able to see the finger. And you have to keep it somewhere close to your forehead, अपने सिर के पास। पहला
अप्रोच में, और फिर दूसरे में उसको आपको शायद आपके पेट के नज़दीक तक लेकर आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ क्योंकि कैमरा है इसीलिए मैं इतना नीचे अपने हाथ को नहीं लेके जाऊंगा. आई विल ब्रिंग इट टिल माय चिन लेवल और मे बी टिल माय चेस्ट. ओके, तो ऊपर, सर के ऊपर आपको हाथ रखना है और आपको हाथ को क्लॉकवाइज घुमाना है. क्लॉक की सुई कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है. ठीक है, you have to keep rotating your hands clockwise. Okay, अब धीरे धीरे इस हाथ को क्लॉकवाइज ही घुमाते हुए हाथ को नीचे लेकर आना है. हाथ को नीचे लेकर आते रहे, आंखों की तरफ लेकर आए, नाक के लेवल पर लेकर आए, मुख के चिन के, मैं चिन तक लेकर आ रहा हूं ताकि यू कैन सी, चेस्ट, और एकदम नीचे पेट की तरफ. अगर आप बैठ के मुझे सुन रहे हो और अगर खड़े हैं तो और भी नीचे आप अपने हाथ को लेकर आ सकते हैं. कीप रोटेटिंग योर हैंड. दैट मीन्स पहले जब आप ऊपर कर रहे थे आपकी आंखें नीचे थी, आप नीचे से हाथ को घूमता हुआ देख रहे थे. और कैसे हाथ दिख रहा था? क्लॉकवाइज. अब ये हाथ का जो रोटेशन है ये आपके आंखों के नीचे आ गया. नाउ योर आईज आर अबाउ द रोटेशन ऑफ योर फिंगर्स. ठीक है, and now when you look at the rotation of your fingers from the top, now your eyes are above the fingers, rotating fingers. प्लीज अच्छी तरह ध्यान से देखिए, क्या वो हाथ की उंगली क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है? हाथ का घुमाना चेंज नहीं हुआ है, यहां क्लॉकवाइज है और यहां एंटी क्लॉकवाइज हो गया. Actually the truth is it is moving in the same circular fashion. But what I am seeing, what I can interpret, what I can believe, यहां से देखता हूं तो क्लॉकवाइज, यहां से नीचे की तरफ देखता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज. अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्लॉकवाइज सही है या एंटी क्लॉकवाइज सही है? जो दिख रहा है हो सकता है वो वैसा ना हो दोस्तों. एंड वही चैलेंजिंग सिचुएशन को मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, एक डिफरेंट व्यू पॉइंट से अगर देखूं, आई बेट यू फ्रेंड्स, एट टाइम्स when you view the same situation from a different viewpoint, you create a new thought and a new way to interpret what's happening in my life. Believe me friends, most of the time this new perspective, a new outlook is very liberating. मुक्त हो जाएंगे आप, क्योंकि यहां इसके कारण मैं दुखी हूं, मैं इस मूवमेंट के कारण दुखी हूं. मूवमेंट वही है लेकिन अब मुझे दुख नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने दृष्टिकोण चेंज कर ली. क्योंकि यहां तो ऐसा घूमना ही दुख था ना, यहां तो घूम ही नहीं रहा है, यहां तो उल्टा घूम रहा है. अब उल्टे में सुख, सुलटे में दुख. Nothing has changed. It's the same challenge. But I am liberated. I am at ease. I am creative. I can see life with a lot of hope. बहुत जरूरी है. COVID, second wave of COVID, death, lack of oxygen cylinder, lack of hospital beds. ये situation, I know it is a truth. वो reality था. No denying the fact. लेकिन उस truth को मैं किस दृष्टिकोण से देख रहा हूं, उसके कारण मैं भयभीत हूं, मैं चिंता में हूं. I am educated, I am well qualified, but it is not creating excellence in life, dear friends. It is very overwhelming for me. Can I change the perspective? COVID-19. Yeah, I need to take all the necessary precautions so that I survive and my family is protected. Maybe everyone is protected. But death cannot shock me, cannot create ripples in my mind, cannot devastate me. You know why? Because death is a reality. I do understand the pain somebody undergoes, wherein the person has lost a near and dear one. But sorry, friends, death is a reality.
और डेथ को अगर हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से समझने का प्रयास करें, एंड ऑल इट रिक्वायर्स इज वन गुरु टू कन्वर्ट माई वीकनेस इनटू माई स्ट्रेंथ। मेरा हाथ नहीं है, मेरा जॉब नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन शट हो गई है, इकोनॉमी की कंडीशन थोड़ी गंभीर है, मेरे पास रिजर्व्स नहीं है, मेरे बच्चों का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, ये सब तो कमजोरियां ही है ना, ये सब तो शॉर्टफॉल्स ही है ना। लेकिन सत्य है, दुबला पतला था वो यंग बॉय, फैक्ट है, उसका एक हाथ नहीं था, फैक्ट है, दूसरा हाथ कहां से लगाए, इतना धन नहीं है, ये सब तो फैक्ट है। बट कैन आई प्ले दिस गेम ऑफ लाइफ wherein I excel in life, not by having an extra hand, but by converting the weakness of this hand into a greatest strength? और उसके लिए you will have to definitely have a different perspective. Second very important thing, जो second tip जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, and that is openness. Can I be open? And openness means what? कभी कभी हम we wear masks. When challenges are there, I try to project a very beautiful, a very confident, a very smart outward personality. लेकिन अंदर थोड़ी सी अवस्था गंभीर है, थोड़ा सा डर है. And in the whole process, I am creating an illusion, an imaginary personality for others to see that I am really powerful, लेकिन अंदर से मैं नहीं. Can I be open to accept my own weaknesses, that yes, this is a challenge that I'm facing and I'm ready to handle the situation of my life very easily. Very important. The third tip is what I call it as curiosity. Curious होना बहुत जरूरी है friends. जब हम छोटे थे ना, आप जब छोटे थे तो कितने क्यूरियस, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा कैसा है, ये ऐसा क्यों नहीं होता, वो वैसा क्यों नहीं होता है. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हम प्रोग्राम्ड होते चले गए, हम कंडीशनड होते चले गए, हम फिक्स्ड होते चले गए. चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है तो हमारे फिक्स्ड माइंडसेट, फिक्स्ड एटीट्यूड से हट करके हमें ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाना पड़ेगा. और पता है ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट का अंतर क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट हमेशा टैलेंट और इंटेलिजेंस को फिक्स मानता है. आई मीन इट कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड. Whereas growth mindset always bring about changes in their intelligence, in their experiences and so on. Fixed mindset वाला चैलेंज के लिए जो भी प्रयास करेगा ना, बोलेगा ये तो फ्रूटलेस है, कितना भी मेहनत करो मुझे कुछ मिलता ही नहीं है, ये जिंदगी ही ऐसा है, लोग ही ऐसा, समय ही ऐसा, मेरा भाग्य ही ऐसा है. लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला वो भी प्रयास करेगा. लेट अस अज्यूम वो रिजल्ट नहीं भी आएगा जैसा वो चाहता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला हमेशा ये सोचेगा द एंटायर जर्नी ऑफ दिस लाइफ वाज वेरी वेरी एक्सपीरियंशियल. आई लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस प्रोसेस ऑफ लाइफ. वो हमेशा रिजल्ट को फायदे और नुकसान के आधार पर नहीं देखेगा. मैंने इतनी मेहनत की और देखो फायदा तो कुछ हुआ नहीं. भले फायदा रिजल्ट के रूप में नहीं हुआ, लेकिन ये पूरा प्रोसेस was very liberating. Was the entire process of life was, gave me beautiful lessons of life. Growth mindset होना बहुत बहुत जरूरी है. इसीलिए मैं कहता हूँ लाइफ का आधार ही होना चाहिए लर्निंग rather than the result. And curiosity हमको हमेशा इस एक ग्रोथ माइंडसेट देता है कि that whatever is happening in my life, can I learn the lessons from it, positive lessons from it. Or growth mindset is directly related to
स्पिरिचुअल एजुकेशन, क्योंकि जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है वो लाइफ को कभी भी नेगेटिव और मायोपिक व्यू में नहीं देखता है, बहुत संकीर्णता से नहीं देखता है। वो जीवन के हर अनुभव में, भले ही बड़ा कठिनाई वाला हो या नुकसानदायक भी क्यों ना हो, वो उसमें भी अच्छाइयों को ढूंढ लेता। अच्छा, इसमें मैंने ये सीखा, मेरे में ये कमी थी, मेरे में ये विशेषताएं थी, मुझे अभी भी अपने अंदर की इन कमियों पर कार्य करना है। कैन आई ऑपरेट माई लाइफ out of peace, out of love, out of courage? Generally, I ask this beautiful question. खुशी के लिए जीना है, पैसों के लिए जीना है, नाम मान शान के लिए जीना है? जब मैं ये पूछता हूँ ना, सारे लोग मुझे कहते हैं गिरीश भाई फर्स्ट ऑप्शन खुशी के लिए जीना है, खुशी के लिए जीना है। तो मैं उनको कहता हूँ तो एक काम करिए, आप अपने पास जितना भी आपके पास पैसा धन है वो सब मुझे दे दीजिए और मैं आपको खुशियां दे दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं पैसे भी चाहिए। मैंने कहा कि आपका वो पहला ऑप्शन जो था ना, उसमें भी थोड़ा सा फ्लॉ है। देखना कितनी सूक्ष्मता से हमको चीजों को सोचना है। वो स्पिरिचुअल एजुकेशन हमको ये पर्सपेक्टिव देता है। सेकंड क्वेश्चन, खुशी के लिए जीना है या खुशी खुशी से जीना है? तब लोगों को पता चलता, हाँ गिरीश भाई, खुशी के लिए नहीं, खुशी से। और कन्वर्टिंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत जरूरी है हम इनर स्ट्रेंथ, इनर वेलबीइंग, जिसको हम हिंदी में आत्मविश्वास, आत्मसंयम, आत्मबल, मनोबल, इसके लिए मेडिटेशन की पढ़ाई बहुत बहुत फ्रूटफुल होता है। Generally it is said, you don't get tired by how much you work. You get tired because you do not do enough to spark the light within you. हम कर इतना सा रहे हैं मेहनत, लेकिन यहां से बहुत ज्यादा थकते। सफल होगा कैसे होगा, क्या होगा, कर तो रहा हूं, प्राप्त होगा, यहां से थकते बहुत हैं। वाई? क्योंकि यहां पर अंधकार है, यहां पर डाउट है, यहां पे कॉन्फिडेंस नहीं है, यहां पर विश्वास नहीं है, यहां पर बहुत मेहनत कर रहे हैं टेक्निकल और एक्सटर्नल लेवल पर। तो जितना हम यहां से प्रकाशित होंगे, जितना हम अपने स्व के अस्तित्व को, हु आई एम, what do I need actually in life? What am I experiencing? How is the feeling of life? जब इन गहन प्रश्नों पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं और ये पाते हैं कि मैं इस शरीर, अपने रोल्स, अपने क्वालिफिकेशन से अलग एक बहुत पावरफुल बीइंग हूँ, बहुत लवली बीइंग हूँ, बहुत हैप्पी बीइंग हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ। उस बीइंग की स्थिति में, उस कॉन्शियसनेस में, उस स्टेट ऑफ माइंड में रह करके मैं जीवन के हर कार्य को करूंगा। बिलीव मी, इवन इन दी challenges in the form of people, time, circumstances comes, I will not lose my inner tranquility. And when my mind is stable, peaceful, for sure I will be able to convert that challenge into opportunities. और यह ज्ञान हमें सतगुरु आकर देता है और कहता है, गिरीश, तुमको जो तुम्हारे कमी कमजोरियां नजर आ रही थी, उसको मैं स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको एक स्टाइल ऑफ अटैक में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। और वो एक स्टाइल ऑफ अटैक जो है, वो है हमारे ओरिजिनल आइडेंटिटी के आधार पर जीना, अपने कोर वैल्यूज को बहुत अच्छी तरह आइडेंटिफाई करना, और उस कोर वैल्यूज से मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। माय लाइफ इज इक्विवेलेंट टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू, द वैल्यू ऑफ हैप्पीनेस, द वैल्यू ऑफ पीस, द वैल्यू ऑफ इनर स्ट्रेंथ, द वैल्यू ऑफ करेज, एंड इन नो वे आई एम गोइंग टू लेट इट गो, howsoever difficult the circumstances and situations may be. So friends,
Whatever you want to do in life, do it with a smile on your face, with positivity in your mind, with passion and dedication in your spirit. And I'm very sure that in future you will experience that life may throw you a lot of challenge, but I have the inner strength to convert into, opportunities with the true spiritual knowledge given by the Satguru. I wish that this spiritual education will definitely add a lot of excellence in your life. With that good note, thank you. Wishing you a very bright future, a very successful times ahead. Thank you. Om Shanti. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गिरीश भाई जी का। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में हमें बताया कि मजबूत आत्मबल, इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच से हम बड़ी से बड़ी परिस्थिति पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसी विषय पर और जानेंगे और अनुभव सुनेंगे आदरणीय सिस्टर जैना का। सिस्टर जैना is a spiritual mentor and leader, a senior Raj Yoga teacher, host of America Meditating Show, and founder and director of Meditation Museum, Washington, D.C. So let's hear from her experiences. Sister Jena. Om Shanti. So many of the eloquent speakers before me have shared with you tips for this very important conference. And thanks to all of you in the Brahma Kumaris in India for inviting the voice from Washington, D.C., where challenges and situations and circumstances are unending. But maybe that's the purpose or the reason for us to move forward. Last year, what I had first started off with, it was a health crisis. And as I tried to think it through, it became a health challenge. But then as I started to evolve, knowing that I couldn't stay at the same level my health crisis was definitely revealing itself to me, I ended up, this is a health opportunity. I want you to go through this process with me. Health crisis, health challenge, health opportunity. Just look at these three words: crisis, challenge, opportunity. Which one makes you feel like you're going to soar? Which one of these three words will offer you an opportunity to feel like within one of these words, I'm going to pull power from the divine in order to navigate whatever I'm going through smoothly? That's what I did last year when I overcame a very, very serious illness. And as we look at everything that's going on in India, in the world, what is our opportunity right now? What has been given to us as an opportunity to rise above what we just have no control over on the outside? The world behind our eye is the real world. And it's from that perspective that the opportunity actually requires our attention. When I can actually grab the opportunity to understand and appreciate the energy of thought, that if I think my way through to health, well-being, if I think my way through to prosperity and happiness, if I can think my way through good relationships, you don't think that's not going to manifest into what it's supposed to be? Heaven, golden age, the best life could possibly be. Maybe that's our opportunity. Maybe what we witness with India going through this incredible narrative of fear and uncertainty and anger and rage, was that our opportunity? America went through it at the beginning of their pandemic, where we lost 500,000 lives. It was an opportunity. But so many of my fellow Americans thought it was a crisis, it was a challenge. But for those of us who thought of it as an opportunity, we were able to rise above it, but also help others. I think that this particular period that we're in is an opportunity. It's an opportunity for you and me to use our greatest resource, thoughts. What are you thinking right now as you listen to me? And what are you feeling
right now as you're listening to me? What are your thoughts? Those thoughts will determine the way you choose to feel, the conversations you will have, and the choices that you will make. Challenges, circumstances, situations beyond our control aren't trying to destroy us. They're not happening to us. They're happening for us. For us to be able to remember that the living being, the soul, the energy that we are, needs our attention. It needs our thoughts to direct its attention to understanding the natural nature of the soul is love, peace, purity, truth. It gives you a lot of happiness. Our opportunity is knocking on our door every single second. Are you willing to answer the knock and respond to it in a way that you can feel that by looking at everything that's revolving in and around you and in and around our world is an opportunity to reconnect to God, to the divine, to source? During this pandemic and all the other insane things that are happening in our universe, how often did you sit with the divine and say thank you, or just sit in silence and say, guide me, or just sit with God and say, do you see me? Do you hear me? Do you feel me? How often have you done that in a day to reconnect to the source of power and the source of truth? It's our opportunity. And this is our time. This is our time to awaken to God's love, God's light, God's wisdom, and watch the magic. Watch the magic emerge as a result of you responding to everything that's happening for you in the context of your opportunity. So let's leave crisis and challenges and difficult and all of that aside. And let's look at life as our greatest opportunity. Let's take a moment of silence and allow our vibrations of light and love and peace to just be what they need to be. Just vibrations, just energy. Just go behind your eyes for a little and acknowledge to yourself, my life is the greatest opportunity. Allow your internal world to become quiet. Peaceful. And invite the energy of God's love and light into your being. God's love and God's light is the solution. It's the cure. A very big thanks to Sister Jenna. You shared from your experiences on how we can respond to situations in a much enlightened manner. How we can look at the brighter side of things. अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक कर दें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपना लें, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी ने एक भंवरे को उड़ते हुए देखा होगा। कहा जाता है भंवरे का शरीर इतना भारी है कि साइंस के नियमों के अनुसार वो उड़ नहीं सकता है। लेकिन भंवरे को इस बात का पता नहीं है। वो हमेशा सोचता है कि वो उड़ सकता है। इसलिए वो जब भी प्रयास करता है, हारता है, प्रयास करता है, लेकिन कभी भी
वो हिम्मत नहीं हारता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं उड़ सकता हूँ, और कई प्रयास करने के बाद फाइनली वो उड़ पाता है। वहीं आपने देखा होगा एक छोटा सा हाथी का बच्चा एक पतली और कमज़ोर रस्सी से बांध दिया जाता है। वो हाथी का बच्चा छोटा होता है, कमज़ोर होता है, इसलिए उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता। लेकिन जब वही हाथी बड़ा हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, तब भी उस पतली और कमज़ोर रस्सी से बंधा रहता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि वो उसको तोड़ नहीं सकता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली जानवर एक पतली और कमज़ोर रस्सी से बंधा रहता है, क्योंकि वो सोचता है कि वो उसे तोड़ नहीं सकता। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अपनी सोच को कैसे विकसित करते हैं। उस हाथी की तरह हम अपनी सोच के गुलाम बने रहना चाहते हैं, या उस भंवरे की तरह हम एक सकारात्मक सोच लेकर स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। इसी सोच को बदलने के लिए हमने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम है राजयोगा थॉट लैबोरेटरी। राजयोगा थॉट लैबोरेटरी एजुकेशन विंग का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो खास युवाओं को सकारात्मक जीवन जीने की कला सिखाता है। इट इज़ एम्ड एट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ यूथ। इसे खासकर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस के अंदर बनाया जाता है, जहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं या स्टाफ हैं, वो इसका लाभ ले सकते हैं। ये प्रोजेक्ट 2 जगह चल रहा है, जयपुर में JECRC कॉलेज में और गुड़गांव में नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी में। आइए सुनते हैं किस तरीके से ये प्रोजेक्ट कई आत्माओं को लाभान्वित कर रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं JECRC से मुकेश भाई, जो इस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं और फाउंडर भी हैं, और साथ में हम सुनेंगे सुदेश बहन जी को, जो नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी में इस प्रोजेक्ट को लाने के लिए निमित्त बनी हैं। ओम शांति। आज हम बात करेंगे थॉट लेबोरेटरी के बारे में, एक ऐसी प्रयोगशाला के बारे में जो राजयोगा थॉट्स के कंसेप्ट पे काम करती है। देखिए, इसमें कमाल की बात ये, आपने दुनिया में बहुत सारी प्रयोगशालाओं के बारे में सुना है, फिजिक्स की लेबोरेटरी, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी, और ये है विचारों की प्रयोगशाला। और ये एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसमें हम अपने विचारों को लेकर के एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इस लेबोरेटरी के एक असाइनमेंट के बारे में यदि हम बात करें तो ऑब्जर्वेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ थॉट्स के बारे में बात करते हैं। हाउ कैन वी ऑब्जर्व द थॉट? क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं थॉट्स को, विचारों को? और यदि ऑब्जर्व कर सकते हैं तो क्या क्रिएट कर सकते हैं? दिस इज द फर्स्ट असाइनमेंट। यानी कि अभी तक तो हम सिर्फ यही कहा करते थे दुनिया में ये विचार आ गया, लेकिन ये विचार हमने क्रिएट किया। वी आर द मास्टर ऑफ द थॉट्स। दिस इज फर्स्ट टाइम। हमारे स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि दे आर फर्स्ट टाइम लर्निंग कि वी आर क्रिएटिंग द थॉट एंड वी आर द मास्टर ऑफ द थॉट्स। ये कमाल की चीज इसके अंदर थी। दूसरी बात है, थॉट्स की यदि हम बात करें तो इसके जो असाइनमेंट्स हैं इनको मुख्य रूप से 4 डायरेक्शंस में बांटा जा सकता है। एक है नॉलेज, यानी स्पिरिचुअल नॉलेज रिलेटेड थॉट्स। दूसरी डायरेक्शंस में थॉट्स के असाइनमेंट आप कह सकते हैं मेडिटेशन से रिलेटेड असाइनमेंट। कितने प्रकार के डिफरेंट, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स ने खुद ने अपनी तरफ से 21 डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशंस डेवलप किए, उनकी गाइडेड कमेंट्रीज स्टूडेंट्स डेवलप करते हैं। तो ये एक अलग प्रकार का अनुभव विद्यार्थियों के लिए रहता है। तीसरी बात हम बात करें तो डिवाइन वर्च्यूज। एट एवरी वीक स्टूडेंट्स टेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्च्यू एंड प्रैक्टिस ऑन दैट वर्च्यू। उस पर प्रैक्टिस करते हैं लोग, बड़ा अच्छा लगता है उस पर। तो ये है थर्ड, जिसके अंदर असाइनमेंट है डिवाइन वर्च्यूज से रिलेटेड। और चौथे ग्रुप में यदि हम डिवाइड करें और बात करें तो चौथा ग्रुप है
चौथे ग्रुप में एक विशेष प्रकार की बात यह आती है कि हम सर्विंग की बात करते हैं, सेवाओं की बात करते हैं। और किस प्रकार की सेवा? ये सेवा दुनिया में हमने जो सुनी है वो वर्ड्स की सेवा है, एक्शन के थ्रू सेवा कर रहे हैं, कर्मों के आधार पे कर रहे हैं, वाणी के आधार पे कर रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट एक नए प्रकार की मन के विचारों के आधार पर संसार की सेवा का एक नया आयाम सीखता है, इससे रिलेटेड असाइनमेंट। तो ये अपने आप में एक विचित्र प्रकार की लैब है जो विचित्र प्रकार के असाइनमेंट्स को लेकर के समायोजित है। तो अब जब बात समझ में आती है, यदि हम थॉट्स या मेडिटेशन इतना इंपॉर्टेंट है, राजीव थॉट लैब इतनी इंपॉर्टेंट है, तो क्या तरीका है, इसे अपने यहाँ कैसे बना सकते हैं? तो ये बेहद आसान तरीका है और बहुत ज्यादा बड़ा सेटअप इसके लिए नहीं चाहिए। स्कूल के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स, या फिर आप इसे कह सकते हो कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रीज के लिए या हॉस्पिटल्स के लिए बहुत ही यूजफुल टूल है राजयोग थॉट लेबोरेटरी। एक छोटा सा स्थान, लगभग 1000 स्क्वायर फीट का एक स्थान हो, जिसमें एक छोटा ध्यान कक्ष बनाया जा सकता है 3 से 5 लोगों के बैठने के लिए। एक 20 लोगों के बैठने के लिए डिजिटल क्लासरूम की जरूरत होगी, जहां पर वो मेडिटेशन के कंसेप्ट को आसानी से सीख सकेंगे। और तीसरी चीज हमें चाहिएगी एक लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी के अंदर स्टूडेंट्स नए नए गाइडेड कमेंट्रीज पे एक्सपेरिमेंट कर सकता है। नई नई चीजों को नए तरीके से सीखने के लिए उसमें एक रीडिंग सेक्शन है। तो इट इज वन ऑफ द वेरी वंडरफुल कंसेप्ट जो नए भारत की एजुकेशन पॉलिसी है। शायद एक दिन नए भारत की एजुकेशन पॉलिसी का एक महान और एक बड़ा स्तंभ एक दिन बनेगा ये। In this journey of self-discovery, JCRC brings you the Spiritual Research Cell, where you could experience not only the tranquility, but could convert it into a lifelong experience. As you step in this place, you step inwards into your own thought laboratory to experiment with self. The meditation room is a silent zone for reflection, contemplation, and connecting the link of broken communication with self and Supreme. The peaceful vibrations of the zone effortlessly inspires the mind to calm down and compose positive, powerful thoughts. Wisdom Hall is a dedicated place to conduct spiritual workshops, lectures, discussions, and collective meditation practice. A healthy mind resides in a healthy body. So here, with a unique path therapy, pranayam, and yogasan, the mind-body health balance is restored. To make this a long-lasting experience, a spiritual library with a collection of books and e-books on meditation, positive thinking, healthy lifestyle, biographies of illustrious people, along with meditation audio-visual aids is developed. As we think, so we become, and our thoughts make us vulnerable to many psychosomatic and lifestyle-related diseases. The research lab at Spiritual Research Cell is sponsored by the Department of Science and Technology, Government of India, to study the effects of meditation on diseases. The research lab is well equipped with variety of devices to track the spiritual progress on your journey to know yourself better. With the aim to reclaim the innate happiness from spiritual amnesia to spiritual awareness, this small step is Spiritual Research Cell JCRC, the giant leap for mankind. जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, प्रेजेंट सिनेरियो में आज युवाओं के मन में कितना फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस और साथ साथ एंगर और रात को नींद नहीं आना, इंसोम्निया और काफ़ी नेगेटिव हैबिट्स डे बाय डे युवाओं के अंदर बढ़ती जा रही हैं, जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग। तो ऐसे समय पर ज़रूरत है, कहा जाता है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ऐसे समय पर ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप सभी को मालूम है, एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के एजुकेशन विंग के द्वारा कई वर्षों से लगातार मनुष्य के मन और मस्तिष्क के ऊपर कार्य किया जा रहा है और उसके अंतर्गत जो रिजल्ट्स निकले हैं और वह थॉट लैब के रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष हुए हैं।
तो हम समझते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो में आज राजयोगा थॉट लैब की बहुत आवश्यकता है। Thought Lab. While entering the Thought Lab, there is a reception right in front. Towards the left, we have a photo gallery with various illustrations and picturization of the concept of thought and thought process. Along the photo gallery, we have a desk for counselor, stress test, and BP test. In the photo gallery, we have illustrations of our innate qualities, how to empower our mind and consciousness with the techniques of Raj Yoga meditation. There is an audiovisual room with an overhead projector, a library cum research room with spiritual literature for self-study, and a high energy room for relaxation and charging through meditation. यहाँ पे मैंने मेडिटेशन सीखा, डेली स्पिरिचुअल क्लासेस अटेंड करी, जिससे मेरी लाइफ में मेरे कन्फ्यूजन्स दूर हुए और मेरी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ी। यहाँ पर मुझे अपनी स्किल्स को बढ़ाने का और शोकेस करने का मौका मिला और बहुत सी अच्छी पर्सनैलिटीज़ को मैंने जाना और उनसे मैं मिला। इससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा और मेरी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। तो मैं कह सकता हूँ कि कॉलेज में ये 4 साल जो मैंने RTL के साथ बिताए, इससे मेरी पूरी लाइफ बन गई। Thank you. Meditation has given me a lot of perspective, and it has given me a lot of harmony, and it has given me a lot of integrity. Like now, whenever I think that if anything bad is happening to me, I don't think that why me. I think that this is a phase and this will also pass. As we do the meditation and gradually we learn that our mind goes through the varied degrees of awareness. I mean, earlier we were not aware of something that we have got to know, and I would like to share some of my benefits that I have got from meditation. Some of them include the better concentration and focus. Earlier, when I would sit for studying, it would take like 20 to 30 minutes to get me exhausted. But after I learned to meditate, I learned to focus my mind on something. I got to learn to focus and to concentrate more. जो फर्स्ट मैंने बेनिफिट जो मैंने रियलाइज़ किया वो ये है कि मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और एक पीस ऑफ माइंड मुझे अपने आप में देखने को मिला। और पहले मैं जल्दी रिएक्ट कर जाता था किसी भी बात को लेके। अब जनरली आई थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग। जब से मैं इससे एसोसिएटेड हूँ तब से कभी भी कोई सिचुएशंस आती है तो मैं उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर पाता हूँ। मैं अब पहले से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाता हूँ। पहले काफ़ी सारा वेस्ट थॉट जिसे हम बोलेंगे वो चल रहा होता था। सेकंड बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग हुआ हूँ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था पहले इमोशनली। हाल ही में मेरे लास्ट 1.5 मंथ से मेरे ग्रैंड मदर हॉस्पिटलाइज थे। देन फिर उन्होंने ठीक होने के बाद अचानक से शरीर छोड़ा, बट हम उनके बहुत क्लोज भी थे। स्टिल हम स्टेबल रहे इस सिचुएशन में। एंड मेरे फादर अभी भी 2 महीने से हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनको भी कोविड हुआ। अभी भी सिचुएशन वैसी की वैसी है, बट मैं चेंज हो गई। तो ये जो चेंज इतना बड़ा आया है कि एक सेंसिटिव गर्ल इतनी स्टेबल हो गई, तो वो सिर्फ इस स्पिरिचुअल स्टडी के कारण ही है। तो राजयोग थॉट लैब को मेरी तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकेश भाई और सुदेश बहन जी का। द नीड ऑफ द आवर इज़ मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। अगर हम इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो जीवन सही में एक सुंदर दिशा की ओर जाएगा। अब हमारे साथ हैं आध्यात्मिक जगत की एक ऐसी प्रभावशाली व्यक्तित्व जिसे आप सभी भली भांति जानते हैं। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी से जिन्होंने सभी के दिलों को जीता है, कई आत्माओं के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा लेके आई हैं सिस्टर शिवानी, जिन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति सम्मान से
सम्मानित किया है। हमारा सौभाग्य है कि सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं और पहले की तरह आपके साथ होंगे ब्रदर श्रीनिधि, जो कई प्रश्नों के जवाब हमको देंगे। नमस्कार, ब्रह्मा कुमारीज के एजुकेशन विंग के कॉन्फ्रेंस के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। बदलते समय में हम सब अनेकों बदलाव देख रहे हैं। ऐसे में एक क्षेत्र जहां पर ये समय सबके लिए मुश्किल भरा या चैलेंजिंग रहा है, वो है हमारे बच्चों के लिए। बहुत ही जल्दी हमारे एजुकेशन सिस्टम्स ने इस बदलते परिवेश को समझा और अपने काम करने के तरीके को बदल लिया। यानी जहां पर हम क्लासरूम टीचिंग मोड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थे, अब हम ऑनलाइन मोड पर आ गए। अब जैसे ही ऑनलाइन मोड पर आए, क्लासेस तो चलने लगे, मगर इसके साथ साथ कुछ नए चैलेंजेस भी आए। अब इन चैलेंजेस को आप चैलेंज समझकर ग्रिप करते हुए रह सकते हैं या फिर आप इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। कहना जितना आसान है, क्या करना भी इतना आसान है? तो इसी सेशन को आज के विषय के रूप में हम लेके जा रहे हैं, यानी जो हमारे पास चैलेंजेस हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज में बदलें। चेंजिंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी की जानी मानी हस्ती ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी है। दीदी, आपका स्वागत है। ओम शांति। पहले तो ये दीदी कि बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। एक तो मन के अंदर एक अनसर्टेनिटी है। टीचर्स के लिए अनसर्टेनिटी अलग है और बच्चों के लिए अनसर्टेनिटी अलग है। और ऐसे में सारी ही एजुकेशन फील्ड में काम करने वाले लोग अलग अलग तरीके से इन सिचुएशंस को देख रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं? ये जो बदलाव आता है इन जनरल सभी के लाइफ में आता होगा, तो क्या उन चैलेंजेस को हम फेस वैल्यू पे चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर लेना ठीक है? उसको चैलेंज बोले या उसको जस्ट एक सिचुएशन बोले, एक्चुअली वो सिर्फ जीवन की एक सिचुएशन है ना। हम उसको जितना शब्द बदलते जाएंगे तो वो चीज का साइज और वेट बदलता जाएगा। यू सी, अगर हम किसी चीज को बोलते हैं ये एक छोटी सी बात है जो जीवन में आई है, तो वो जरा छोटी सी ही लगती है। या हम कहते हैं ये एक जीवन की एक सिचुएशन है जो आई है, वो भी नॉर्मल लगती है। फिर हम कहते हैं ये एक चैलेंज आया है, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बड़ा फील होने लगता है। फिर कुछ लोग कहते हैं ये जीवन में एक क्राइसिस आया है, फिर वो और बड़ा फील होने लगता है। सो इट्स आवर चॉइस कि हम उसको कितना मैग्निफाई इन आवर माइंड। जो वो बाहर है वो तो उतना ही है, उसका साइज नहीं चेंज होता जो सिचुएशन है, लेकिन हम उसको लेबल्स कौन से अटैच करते हैं एंड उसको किस भाषा में उसको परसीव करते हैं, बिकॉज द माइंड परसीव्स द सिचुएशन ना। आप देखो, एक ही घर में 4 लोग रहते हैं और उस घर में एक सिचुएशन आती है, लेकिन चारों लोग उसको एक अलग तरह से देखते हैं। एक कहता है इतनी बड़ी बात आई है, कोई कहते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, तीसरा कहता है ये तो आती रहती है, मतलब जीवन में ऐसा होता रहता है, चौथा कहता है कौन सी बात आई है, मतलब इसमें कोई बात का है। सो इवन इन वन हाउस 4 people will perceive the same situation in a different way। तो बात का कभी कोई साइज ही नहीं होता है, सिचुएशन का कोई साइज नहीं होता है, वो साइज डिसाइड करता है हमारा मन। तो हमारा मन उस बात को जितना छोटा बनाए, उतना उस बात को फेस करना, उस बात को इजीली क्रॉस करना हमारे लिए सहज हो जाएगा। और हमारा मन उसको जितना बड़ा बनाए तो बात बड़ी हो जाती है, हम छोटे हो जाते हैं, फिर वो बात हम पर हावी हो जाती है। अगर हम बात को छोटा रखें, खुद को ऊपर रखें, तो हम बात पर हावी हो जाएंगे। सो अ लॉट ऑफ मैग्निफिकेशन हैपेंस हियर। तो स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि इवन अगर जीवन में कोई सो कॉल्ड क्राइसिस भी आया हो, जिसको सारी दुनिया भी क्राइसिस बोले, तो हमें सिखाते हैं कि आप उसको बोलो छोटी सी बात आई है, ये तो सहज क्रॉस हो जाएगी। जस्ट टॉकिंग लाइक दैट इनसाइड इन आवर माइंड, दूसरों से नहीं, इन आवर माइंड, इट गिव्स अस द पावर टू फेस द सिचुएशन। तो बात का साइज हम खुद ही डिसाइड करेंगे। जी, जैसे ट्रांसफॉर्मिंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, तो एजुकेशन इंडस्ट्री में हमने ये चीज़ देखा कि बहुत क्विकली लोगों ने रैप्ट कर लिया। सब कुछ ऑनलाइन करने लग गए, बच्चे स्कूल ऑनलाइन करने लगे, एक्टिविटीज़ ऑनलाइन होने लगी। बेशक स्कूल के वर्किंग आवर्स कम कर दिए, बट घर बैठे लोग अपने एजुकेशन को मिस आउट नहीं करें, इसके लिए अक्रॉस यूनिवर्सिटीज़ सारे एजुकेशन फील्ड में हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन देखा
शायद ही कोई और इंडस्ट्री इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाई जितना एजुकेशन इंडस्ट्री ने अडेप्ट किया। तो इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लोगों ने देखा और सोचा कि चलो ये नहीं तो कुछ ऐसा करते हैं। क्या हर बार हम लाइफ के ऐसे छोटे मोटे सिचुएशन, जैसे आप कह रहे थे, उस चैलेंज को आप सिचुएशन भी समझ सकते हो, तो उस सिचुएशन को क्या हम ऐसे ही एक न्यू पर्सपेक्टिव से, चलो इसके बारे में कुछ और किया जा सकता है क्या, ऐसे सोचने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि सब लोग ऐसा नहीं कर पाते। ऐसा क्या डिफरेंस होता है जो वो कुछ लोग कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं? जब भी कोई सिचुएशन आएगी तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो सिचुएशन को क्वेश्चन करना, विच मीन्स द माइंड एंड इंटेलेक्ट क्वेश्चंस अ लॉट, प्रश्न चित करते हैं। प्रश्न मतलब क्यों हुआ, ये ऐसे कैसे हो गया, ये किसकी वजह से हुआ, इसमें गलती किसकी थी, कौन इसका जिम्मेवार था। तो वी आर चर्निंग अबाउट व्हाई इट हैज हैपेंड, हाउ कुड इट हैपन, व्हाट विल बी द फ्यूचर। तो हम प्रश्नों में घिरे जाते हैं, और जितना हम प्रश्न करते रहते हैं तो यहाँ जो माइंड है वो क्लटर हो जाता है, मतलब बहुत शोर मचने लगता है। फिर वो सिर्फ हमारे मन में नहीं रहता, वो हमारे वर्ड्स में भी आता है। ऐसे कैसे हो गया, किसकी वजह से, अब ये कब तक चलेगा, कितने साल ऐसे बंद रहेगा, ऐसे होगा तो फिर क्या भविष्य है, बच्चों का तो कितना नुकसान हो रहा है। मतलब एवरी थॉट, जिसको हम सो कॉल्ड नॉर्मल थॉट बोलते हैं, इट्स अ लो वाइब्रेशन थॉट, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क करती जा रही है। तो जितना यहाँ नॉइज आएगी तो उतना सोल्यूशन दिखाई नहीं देगा। सोल्यूशन देखने के लिए एक साइलेंट माइंड चाहिए। कई बार सोल्यूशन सामने खड़ा होता है और हमें फिर भी नहीं दिखाई देता। फिर कोई और सजेस्ट करता है तो हम बोलते हैं, अरे ये बात मुझे क्यों नहीं क्लिक हुई कि ये ऐसे कर सकते थे, इनको क्यों क्लिक हुई? क्योंकि जो दूसरा है ना, वो डिटैच्ड है उस सीन से। तो वो हमारे घर आता है और हम सब इंटैंगल्ड होते हैं, ये ऐसे ऐसे। वो बाहर से आता है डिटैच्ड और बोलता है, अरे इसमें तो ऐसे कर लो। सो दैट इज द क्वालिटी दैट इज नीडेड, डिटैच्ड फ्रॉम द सीन। डिटैच्ड मतलब यहाँ साक्षी भाव, साक्षी दृष्टा। साक्षी मीन्स डोंट गेट इंटैंगल्ड इन क्वेश्चंस, पहले साइलेंस योर माइंड। और जब हम माइंड को साइलेंट करते हैं, हमारी इंट्यूशन पावर वर्क करती है, हमारी क्रिएटिविटी वर्क करती है, और फिर सोल्यूशन सामने दिखाई दे देता है। कई बार सोल्यूशन इमीडिएटली मिल सकता है, कई बार सोल्यूशन हो सकता है इमीडिएट कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा हो, लेकिन उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है कि माइंड को पहले साइलेंट रखो। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग नीडेड इन एवरी सिचुएशन। इन एवरी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में हम जनरली क्या करते हैं, पहले सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। मतलब परिस्थिति को किसी तरह हम ठीक करें, कंट्रोल करें, चेंज करें। हमेशा पहले ध्यान अपनी स्थिति का करना चाहिए कि पहले मेरा मन ठीक रहे, माई माइंड एंड इंटेलेक्ट हैज टू बी फाइन, नाउ आई विल एंटर इनटू द सिचुएशन। तो जब स्थिति सही होती है तो परिस्थिति छोटी लगती है, क्योंकि हमारी स्थिति सही होगी मतलब हायर वाइब्रेशन पे गए, परिस्थिति छोटी लगती है। हम डिटैच्ड हो जाते हैं, मतलब हम सिचुएशन के वाइब्रेशन में इंटैंगल नहीं होते, हम काम एंड स्टेबिलिटी के वाइब्रेशन पे होते हैं। तो वाइब्रेशन से डिटैच हो गए ना, सिचुएशन से दूर नहीं होते। लोग डिटैचमेंट का मीनिंग ठीक नहीं लेते, को लगता है डिटैचमेंट मतलब अच्छा फिर छोड़ दो, इसमें तो मुझे कुछ नहीं आता करना। सिचुएशन से डिटैच नहीं, सिचुएशन की वाइब्रेशन से डिटैच्ड, और अपनी एक वाइब्रेशन क्रिएट करें, तो दैट क्रिएटिविटी विल बी देयर। एंड जब वो होगा तो सोल्यूशन ढूंढना, सोल्यूशन सामने आकर ऐसे खड़े हो जाएगा। और अगर 2 दिन लग भी गए, कई बार 2 महीने भी लग सकते हैं, नई सोल्यूशन मिल रहा है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको ठीक रखें। ये ठीक तो सोल्यूशन जरूर मिलेगा उसका। जी, जब आप इस एग्जाम्पल को दे रहे थे तो आजकल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए भी लोग ऐसी ही बात करते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स में मतलब कोई नई चीज़ नहीं हो रही है, आप उस चीज़ को जो आपके सामने है उससे हट कर सोच रहे हैं कि चलो ऊपर से देखते हैं इस चीज़ को, एक डिटैच्ड ऑब्जर्व के रूप में। अब एक और बात जो एजुकेशन से रिलेटेड है, ये जो करंट टाइम्स हैं इसमें एड्यूटेक ने बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा। ये एक ऐसा सेक्टर था जिसके बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए कि एड्यूटेक सेक्टर ने ऐसी ग्रोथ की है जो किसी ने गेस भी नहीं किया था कि ऐसा सब कुछ होगा, और बहुत सारे लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना भी शुरू किया। अब जब हम इन बदलते हुए परिवेशों में आए हैं, अब इनके सामने हम नए चैलेंजेस देखते हैं
क्योंकि ये पहले से डिज़ाइन नहीं था। हम रेगुलर स्कूल गोइंग एटमॉस्फेयर से, फेस टू फेस कम्युनिकेशन से, उसी परिवेश में हम बहुत ज़्यादा अपने आप को अडेप्ट कर चुके थे। अब ये जो नई चीज़ आई है, तब हम देख रहे हैं कि हम कुछ नए चैलेंजेस फेस करते हैं। इसमें मैं 2 अलग-अलग प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। पहला तो बच्चों से रिलेटेड है। जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके क्लासेस, एग्ज़ाम सब कुछ ऑनलाइन हो रहे हैं, तो हम धीरे-धीरे एक चीज़ उनमें देख रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्ट खोते जा रहे हैं। तो माता-पिता को अक्सर लगता है कि भाई इनके लिए तो हमने इतना इन्वेस्ट किया, इतना एड्यूटेक का सॉफ्टवेयर खरीदा और इनको इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ऐसे में एक नया चैलेंज लगता है। आजकल ये टर्म्स भी हम सुनने लगे हैं, ज़ूम फटीग, और ये सारी चीज़ें कॉमन होती जा रही हैं। तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए, ये हम नहीं जानते। तो नई टेक्नोलॉजी जो चैलेंज आई, चैलेंज के रूप में एक अपॉर्चुनिटी आई, उसे टेक्नोलॉजी से यूज़ करके हमने यूज़ तो करना शुरू किया, बट अब इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हमें पता चल रहे हैं, तो अब हमें लगता है ये फिर नया चैलेंज है। तो ऐसे में लोगों ने टेक्नोलॉजी को तो अडैप्ट कर लिया, बट अपने आप को अडैप्ट नहीं किया कि हमें क्या सोचना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताएं। मेन चीज ये है कि जैसे ही हमने ऑनलाइन करना शुरू किया तो हमने बाहर एक सोल्यूशन तो ढूंढ लिया एंड इट वाज इजी ना, कि ठीक है हम स्कूल नहीं जा सकते तो हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा था, उसके टीचर्स को कुछ सीखना पड़ा ऑनलाइन कैसे करना है। बच्चे जल्दी अडॉप्ट कर गए क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ जल्दी अडैप्ट कर लेते हैं अभी। लेकिन मन में बहुतों ने एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज को। एंड इवन नाउ वी सी कि बहुत सारे पेरेंट्स और टीचर्स, नॉट सो मच चिल्ड्रन, लेकिन पेरेंट्स एंड टीचर्स कहते हैं हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है, ये ऐसे कोई पढ़ा जा रहा है, ये इस 2 साल में तो इनका बहुत लॉस हो जाएगा। नाउ दिस इज वेयर द इशू इज कि सोल्यूशन बाहर तो ढूंढा, लेकिन माइंड अभी तक उस सोल्यूशन को रेजिस्ट कर रहा है और माइंड उस सोल्यूशन को ये एनर्जी दे रहा है कि ये तो सही नहीं हो रहा है। इसीलिए कभी भी बाहर से पहले पहले अंदर ठीक करना पड़ता है, क्योंकि अब बाहर टेक्नोलॉजी तो आ गई लेकिन वाइब्रेशन ही अच्छी नहीं है। स्ट्रेस बहुत क्रिएट हो रहा है उस बात का, एंजाइटी बहुत क्रिएट हो रही है पेरेंट्स के अंदर, बच्चों में उतनी नहीं, पेरेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा उसकी एंजाइटी क्रिएट हो रही है। टीचर्स को भी ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चों का तो बहुत लॉस हो रहा है, ये तो पता नहीं इस 2 साल में कमजोरी ना हो जाए, मतलब दैट इज लॉट ऑफ एंग्शियसनेस कि ये क्या हो रहा होगा। जब इतना स्ट्रेस होता है किसी बात का और पेरेंटल स्ट्रेस भी उस तरह से क्रिएट होता है, तो उसके वाइब्रेशन भी बच्चों तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चा जिस तरह से स्कूल में स्टडी कर सकता है, इट कैन नॉट बी द सेम ऑनलाइन, इट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन फिर वही तो सिचुएशन है कि इस समय हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि वो कभी थोड़ा इधर देखेंगे, कभी थोड़ा उधर देखेंगे, कभी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होंगे। बच्चों को क्यों लेना है, हम तो बड़ों को देखते हैं सारा दिन वेबिनार पे। अगर हम यही सेशन, जब हम सेशंस करते हैं वेबिनार्स पे, अगर हम इनको ऑडिटोरियम्स में करें, हॉल्स में करें, कोई क्लोज्ड कमरे में करें, इतनी कंसंट्रेशन से सारे बैठते हैं कि 1 घंटा बीत जाए तो कोई इधर का उधर नहीं देखता है, मतलब बिकॉज एनर्जी क्रिएट होती है ना, एक रूम की एक एनर्जी क्रिएट होती है। अब वही सभी लोग सेम हम सब लोग, हम वेबिनार कर रहे हैं, कोई 5 मिनट बाद नीचे देख रहा है, कोई सोचता है चाय कॉफी साथ में पी जा सकती है, कोई बीच में अपना फोन भी चेक कर लेता है, कोई तो कैमरा ऑफ करके कुछ और काम करके भी वापस आ जाते हैं। सो व्हाई आर वी कंप्लेनिंग अबाउट चिल्ड्रन? वो तो बच्चे हैं, ये तो हम बड़े कर ले रहे हैं ये सब कुछ। बट हमें लगता है कि ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ इट ना, मतलब उनके पास ऑप्शन है कि वो कैमरा बंद करके कहीं भी जाके आ सके, दे आर गोइंग टू यूज दैट ऑप्शन। वी कैन गेट डिस्टर्ब्ड अबाउट इट। न्यू सिचुएशन, वी हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, एंड उस सिचुएशन के साथ जो थोड़ी सी बातें आएंगी उसको एक्सेप्ट करें। हम रेजिस्ट करेंगे और हम बोलेंगे नहीं आप हिले कैसे, आपने इधर के उधर देखा कैसे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये सिर्फ हमारे स्ट्रेस को बढ़ाएगा और उनको भी स्ट्रेस कर देगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जरूरी नहीं है कि ये उतनी एकाग्रता से बैठ सकते हैं जितना वो स्कूल में बैठ सकते हैं। वो हमें कंपैरिजन करना नहीं चाहिए। हम 2 सिचुएशंस का कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? वी शुड नॉट कंपेयर। हमें सिर्फ ये फोकस करना है, ऑनलाइन पढ़ना है, लेकिन बच्चा है, उस बच्चे ने भी कभी 6-6 घंटा स्क्रीन के सामने नहीं बैठे हैं, तो उनको हम ये सोचें कि ये उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करे, दैट्स नॉट द पॉइंट। उनके लिए कितना कंफर्टेबल कर सकते हैं,
कितना उनके लिए इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और अगर वो थोड़ी देर थक जाते हैं और नहीं ऑन करते, इट्स परफेक्टली फाइन, यू नो, डोंट गो अगेंस्ट व्हाट इज हैपनिंग। एंड फिर कुछ हम ऐसी चीजें रोज करें जिससे उनकी स्थिति बेटर हो, क्योंकि वो सारा दिन एक पर्सन टू पर्सन कनेक्ट नहीं, एक मशीन टू पर्सन कनेक्ट हो रहा है उनका। तो हम उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए क्या हम सुबह सभी इकट्ठे मिलकर प्राणायाम कर लें, आईज के एक्सरसाइज कर लें, स्पाइन की एक्सरसाइज कर लें, नेक के एक्सरसाइज कर लें, मेडिटेशन कर लें, जिससे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है। स्टिल बैठ जाएं, क्योंकि हम लगता है बच्चे मेडिटेशन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप 10 मिनट सिर्फ स्टिल बैठो, सिर्फ आप चौंकड़ी मारो और स्टिल बैठ जाओ एंड जस्ट डीप ब्रीदिंग इट। उतना तो हर बच्चा कर सकता है। तो लेट्स डू दी अदर थिंग्स। तो जैसे हमारा कोई प्रोफेशन होता है, उसके कोई बातें होती हैं, तो हम उसका ध्यान रखते हैं ना। जैसे आज डॉक्टर्स हैं, अब पहले डॉक्टर्स होते थे, आज उनको डबल मास्क भी पहनना पड़ता है, आज उनको शील्ड भी पहननी पड़ती है, आज उनको वो पीपी किट भी पहननी पड़ती है। बट आर दे स्टिल डूइंग देयर वर्क? दे कैन जस्ट सिट बैक एंड से इतनी गर्मी है, इसमें हम नहीं पहन सकते। पावर टू अडेप्ट, पावर टू अडेप्ट हम सबके पास है, लेकिन उसको कंपैरिजन नहीं करना है। उसको इस सिचुएशन को एज इट इज देखकर, एज इट इज कि दिस इज आवर सिचुएशन, इसमें हमें बेस्ट क्या करना है। सिचुएशन को कंपेयर ना करें, सिचुएशन के बारे में कंप्लेंट ना करें। दीज आर ऑल आर डिप्लीटर्स। कंपैरिजन, कंप्लेनिंग एंड थिंकिंग कि दिस इज अ लॉस, इसमें नुकसान हो रहा है हमारे बच्चे का। मतलब अच्छा होना भी हो तो हम उसको बोलेंगे नहीं, ये नुकसान ही हो रहा है, इसका नुकसान ही हो रहा है। ऑलवेज गिव ब्लेसिंग्स एंड हाई एनर्जी टू एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग। तो जो चीज अच्छी नहीं भी होती ना, वो भी बेटर बन जाती है अगर मन की स्थिति ठीक हो तो। जी, जैसे आपने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण ये दे दिया कि ये बच्चों के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना बड़ों के लिए है। मैं आज ही किन्हीं बच्चों से बातचीत कर रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि बहुत बार मेरे पेरेंट्स ही मेरे को बोलते हैं, क्या पता तुम पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। अब बच्चों को इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा हर्ट महसूस होते हैं कि भाई पहले तो हम इतने घंटे बैठ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों को जो चीज़ समझ में आ रही है वो समझ में आ रही है, बट बड़ों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज़ आपने बताई। बट एज एजुकेटर्स, एज टीचर्स, जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं या फिर डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में हैं, हमें क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि मैं कुछ बच्चों से ये बातचीत कर रहा था, तो मैं ये सुन रहा था कि एक क्लास पूरा होता है, दूसरा क्लास फिर शुरू हो जाता है, ना उठने का टाइम मिलता है, ना पानी पीने का टाइम मिलता है, कैमरा हम बंद नहीं कर सकते, बंद करते ही तुरंत पूछते हैं कि कैमरा चालू करो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए भी नई हैं। तो ऐसे में हम बच्चों की मदद करने के लिए एज एजुकेटर्स हमें क्या करना चाहिए इन बदलते हुए दौरों में? ये जो चैलेंजेस हैं, इनको क्या हम कुछ क्रिएटिव करवाने में, जैसे आपने पेरेंट्स को कहा कि वो एक्सरसाइजेस करवाएं या कुछ ऐसा कराएं, ऐसे में एजुकेटर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं? एक्चुअली जब हमने वर्क फ्रॉम होम किया या स्टडी फ्रॉम होम किया, सबको लगा कि ये इजी हो जाएगा ना, लाइफ बड़ी सिंपल हो जाएगी। और स्टार्टिंग में तो सबने ये कहना शुरू किया अभी ऐसे ही होना चाहिए, लाइफ ऐसे ही होनी चाहिए, वी डोंट वांट टू ट्रैवल एंड गो बैक। बट विद इन अ मंथ और 2 मंथ दैट वाज अप, वो पीरियड खत्म हो गया। कहते हमें वापस जाना है, हमें ऑफिस वापस जाना है। व्हाई? बिकॉज वी हैड टू गिव मोर थॉट टू इट कि ये कैसे करना है वर्क फ्रॉम होम, कैसे करना है स्टडी फ्रॉम होम। अब हमने शायद ऐसा किया कि जिस तरह से हम स्कूल में स्टडी कर रहे थे कि एक सब्जेक्ट, फिर उसकी घंटी बजी तो दूसरा सब्जेक्ट, उसकी घंटी बजी तो तीसरा, तो हमने सेम चीज ऑनलाइन कर ली। सो मे बी वी नीड टू स्टिल थिंक ओवर इट कि क्या एक माइंड को, ब्रेन को, बॉडी को सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर needed a little break in between every session, needed a little exercise in between every session, and most important needed a little more interesting things. क्योंकि वही चीज जो एक क्लासरूम में आपको होल्ड कर सकती है, वो सेम चीज ऑनलाइन नहीं होल्ड कर पाती है। क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब कुछ ऑनलाइन मिल सकता है, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं। सबसे पावरफुल टूल ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो होता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन, एक एनर्जी। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर की एक एनर्जी होती है, हमारे साथ सारे जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनकी एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी हमारे माइंड को कंसंट्रेट करना इजी करती है। तो इसलिए
वो एलिमेंट मिसिंग है, तो हमें उस एलिमेंट को कॉम्पनसेट करना पड़ता है। सबसे पहली चीज, पेरेंट्स वो टाइप की एनर्जी क्रिएट करें, उनको एक उस तरह की फीलिंग करें, और फिर हम थोड़े से क्रिएटिव एलिमेंट्स शायद टीचर्स क्रिएट करें या फिर पेरेंट्स क्रिएट कर लें उस बच्चे के लिए, या बच्चे खुद भी सोच सकते हैं। बच्चे खुद भी सोच करके सजेस्ट कर सकते हैं कि हम 5 मिनट ये कर लें, बीच में हमें कुछ थोड़ा सा, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू सिटिंग। आज अगर कोई आईटी इंडस्ट्री में है, दे आर यूज्ड टू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर, तो वो सुबह बैठते हैं, रात को उठते हैं कंप्यूटर से, बट आदत पड़ जाती है ना कुछ करने की, तो बच्चों को तो नई आदत है। सो दैट्स व्हाई दोस क्रिएटिव एलिमेंट्स आर नीडेड, दे आर वेरी वेरी नीडेड। तो इसलिए along with the solution we had to also keep checking कि ये solution का result क्या निकल रहा है, एंड फीडबैक उन बच्चों से ही लेना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ वो solution implement किया है, जैसे कि वो हमारे क्लाइंट है ना उस प्रोडक्ट के, तो जो क्लाइंट है उसका क्लाइंट फीडबैक तो लेना चाहिए कि आप सजेशंस दीजिए कि आपको क्या लगता है इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। सो दैट ऑल इज डेफिनेटली नीडेड, बट एट द सेम टाइम आई थिंक वी शुड नॉट वरी टू मच, क्योंकि हमें ये देखना होगा, सपोज मैं 100% स्टडी कर सकती हूँ स्कूल जाने से, तो ठीक है, मेरा अभी 100% नहीं हो रहा है, नेवर माइंड, 100 की जगह 80 हो रहा होगा, बट देन नेवर माइंड ना, पूरे देश के सभी बच्चों का सेम ही 80 हो रहा है ना, डजंट मैटर, कोई हमारे से आगे तो निकल के जा नहीं रहा, सो व्हाई आर वी पैनिकिंग सो मच। सिचुएशन है, उस सिचुएशन के सामने ये थोड़ा 10% कम स्टडी करना या कुछ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चों की इस समय कोपिंग स्किल्स बढ़ रही हैं, ये सबको लगता है कि बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है इस साल, विच इज नॉट ट्रू। बच्चों ने कितना ज्यादा अडेप्ट किया है इतनी चीजों के लिए जो तो वो पूरे जीवन में ना करते, नहीं तो एक्चुअली दिस इज सो मच ऑफ अ लर्निंग फॉर अ चाइल्ड। एक बच्चा एक दिन भी घर नहीं बैठ सकता है, हर थोड़ी देर बोलता है मैं नीचे जाऊं, मैं खेलने जाऊं, मैं बाहर जाऊं। आज वो इतने महीने बैठे एट अ स्ट्रेच, कितना कोपिंग स्किल है ये। तो वो स्किल्स डेवलप हुए हैं जो वैसे नॉर्मल लाइफ में न डेवलप होते। तो दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग इमोशनल रेजिलियंस। उनकी रेजिलियंस बढ़ी है, उनके पास पहली बार जीवन में इतनी बातें आई हैं which is not their way and they are still managing with it। so ये तो उनको इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनाएगा। हर चीज पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई वन पार्ट ऑफ लाइफ है, ये हमें इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो पेरेंट्स नीड टू फोकस ऑन दैट, क्या चिल्ड्रन आर बिकमिंग इमोशनली स्ट्रॉन्गर। So don't worry, just see that they are making the best out of it, that's all, but don't compare it to what is happening in school। and जैसे आपने कहा ट्रस्ट, अगर वो बार बार आके देखेंगे कि स्क्रीन पे आप सच्ची में पढ़ रहे हो या स्क्रीन पे आप कुछ तो नहीं और नहीं कर रहे, या बीच में आप इसको मिनिमाइज करके कुछ और को तो नहीं देख रहे, तो वो बच्चे को तो वैसे ही वाइब्रेशंस आके आइडियाज आने लग जाएंगे कि हाँ आई शुड डू दैट। हमारे वाइब्रेशंस पहुंचते हैं, वी नीड टू ऑलवेज रिमेम्बर, हमारे वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। इवन अगर आपका बच्चा कंटिन्यूस नहीं पढ़ रहा ना, आपको दूसरे कमरे में बैठकर यही थॉट क्रिएट करना है, वो कंप्लीट कंसंट्रेशन से फोकस्ड होके वो एक्यूरेटली सिर्फ पढ़ रहे हैं। दिस इज अ थॉट द पेरेंट हैज टू क्रिएट, दिस इज अ थॉट द टीचर हैज टू क्रिएट अक्रॉस द स्क्रीन, क्योंकि टीचर के भी तो संकल्प चल रहे हैं ना दूसरी साइड से कि इनका कैमरा ऑफ है, ये कहाँ गए, ये किधर। डोंट थिंक, सिर्फ कम्युनिकेट विद द राइट एनर्जी। अगर पेरेंट दूसरे कमरे में बैठकर सोचे पता नहीं पढ़ रहा है, कुछ और तो नहीं देख रहा, कोई फ्रेंड से चैट तो नहीं कर रहा, आपके वाइब्रेशंस ऑफ डाउट रेडिएट हो जाते हैं, और ये वाइब्रेशंस उस बच्चे को वो थॉट क्रिएट कर देते हैं, आप बहुत थक गए, 5 मिनट किसी से बात कर लेते हैं। ये जो हमारे को थॉट्स आते हैं ना, कई बार हम कहते हैं ये थॉट कहाँ से आया मुझे, ये किसी ने भेजा होता है, भेजा मतलब हमारे बारे में सोचा होता है। So we have the power to communicate with our thoughts. So we need to think carefully. Don't think anything which you don't want your child to do. जो आप चाहते नहीं आपका बच्चा करे, आप उसको सोचे नहीं। जो आप चाहते हैं कि वो करे, आप सिर्फ वो सोचो और वो रेडिएट करो। वो नहीं भी कर रहा था तो वो करने लग जाएगा। जब ये बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसे बहुत बार हमारे साथ भी होता है। कभी कभार हम कोई चीज प्लान नहीं करते, फिर अचानक जब वो चीज कर लेते हैं लगता है अरे ये मैंने कैसे कर लिया, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो ऐसी चीजें होती हैं। अब जैसे आपने ये कहा कि
हम लोग थोड़े क्रिएटिव हो जाएं, हम ट्रस्ट बिल्ड करें अपने बच्चों के साथ। टीचर्स जो आज एक चैलेंज फेस कर रहे हैं उनके बारे में मैं अगले 5 मिनट में आपसे कुछ राय लेना चाहूँगा। ये एक कॉमन सी फैक्ट है जो हम देख रहे हैं कि टीचर्स को अभी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि ये ऑनलाइन हो रहा है। बच्चे क्लास में होते तो जैसे आपने कहा कि एक वाइब्रेशन क्रिएट होता, बच्चों को देख के ही टीचर्स अंदाज़ा लगा लेते कि इसका अटेंशन कहाँ है, ये कहाँ है, क्या कर रहा है, पता चल जाता। अब क्योंकि वर्चुअल है तो वो एक पर्सनल कनेक्ट कर पाने में थोड़ी चैलेंज महसूस होती है। ऐसे में क्या हम स्पिरिचुअली या इमोशनली या फिर कुछ ऐसा इफेक्ट हो, ऐसा कुछ सोच के हम शुरुआत करें या फिर कुछ ऐसी तैयारी के साथ हम हर दिन क्लास में आए, या ऐसा कुछ किया जा सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो टीचर है, फैसिलिटेटर है, उनका मन बहुत स्थिर होना चाहिए। सी वाइब्रेशंस का कितना आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जितना हमारे एंड पे स्थिरता होगी उतना सामने भी स्थिरता आएगी। जितना हम थोड़ा सा स्कैटर्ड होंगे इन आवर माइंड, उतना सामने भी स्कैटर्ड होंगे। ये एनर्जी है, दिस इज लॉ ऑफ एनर्जी, इट वर्क्स लाइक दैट, है ना। तो इसीलिए सबसे पहली चीज कि टीचर का माइंड बहुत स्थिर होना चाहिए। उन्होंने बहुत कमाल की है इस 1 साल के अंदर, बिकॉज सडनली टू प्रिपेयर एवरीथिंग टू टीच ऑनलाइन एंड सडनली टू यूज प्लेटफॉर्म्स भी तो नए थे ना सबके लिए, सबने तो नहीं यूज किया हुआ, तो बहुत कमाल की है। लेकिन जितनी कमाल हम बाहर करते हैं ना, उसकी 10% कमाल हम अंदर भी कर लेना साथ में, तो डबल कमाल हो जाएगी। हम बाहर बहुत मेहनत करते हैं, हम पूरा डिजाइन सिलेबस चेंज कर लेते हैं, हम प्लेटफॉर्म्स लर्न कर लेते हैं, हमने अगर यूज नहीं किए हो पहले तो वो भी हम सारा कुछ सीख लेते। वी डू मिरेकल्स आउटसाइड, इतना एफर्ट एंड हार्ड वर्क हम सिर्फ यहाँ नहीं, हमें लगता है ये किसी को नहीं दिखाई दे रहा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो हमारे माइंड में चल रहा है ये बहुत मुश्किल है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये कोई तरीका है, ऐसे कौन पढ़ाएगा, अच्छा कुछ दिन कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी साल साल हम ऐसे ही पढ़ाते रहे। सो देयर इज सो मच नॉइज इन आवर माइंड, लॉट ऑफ नॉइज इन आवर माइंड। तो वो जो नॉइज है वो बाहर की मेहनत का जो रिजल्ट निकलना चाहिए उसको थोड़ा सा कम कर देता है, थोड़ा सा कम करता है। क्योंकि आप, इट्स लाइक खाना, चलो किसी ने हमारे लिए खाना बनाया है ना, अब उसने बहुत मेहनत की, 6 चीजें बना दी आपके लिए खाने के लिए, बहुत मेहनत की, सुबह से रात तक आपके लिए खाना बना रहे थे, ऑफिस से छुट्टी ली एंड फिर आप डिनर पर उनके घर गए, उन्होंने खाना बनाया, बहुत ब्यूटीफुली टेबल भी लेड आउट थी, लेकिन खाना खा के ना आपको इतनी फील नहीं आई वो खाना खाने के बाद, जितना उन्होंने जिस तरह से बनाया, उन्होंने सोचा पता नहीं आपको कितना अच्छा लग जाएगा खाना खा के, बट ऐसा आपको फील आया नहीं ज्यादा। उसका रीजन ये है क्योंकि उन्होंने बाहर बहुत मेहनत की, लेकिन अंदर उन्होंने छुट्टी भी लेनी पड़ गई, आज का मेरा एक दिन गया, अब ये मुझे डबल काम कल करना पड़ेगा, क्या है आजकल 6-6 सब्जियां बनानी पड़ती हैं, कहाँ गए वो दिन जहाँ 2 सब्जियों में काम हो जाता था, और आज वो आई भी नहीं बर्तन करने के लिए। सो ऑल दैट नॉइज ऑफ द माइंड goes into the food, goes into the food. So जो बाहर का एफर्ट होता है ना, उससे पहले ये थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है कि हमने चूज किया है ये मेहनत करना, अब इसको प्यार से एक्सेप्ट करके इसको वो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी देकर करें। आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं आप उसको थोड़ा सिंपल कर सकते हैं, अगर आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है उतना प्रिपेयर करना। अब अगर कोई आपके लिए 6 चीजों की जगह 2 चीजें बनाए सिर्फ, लेकिन वो 2 चीजें बहुत प्यार से बनाए एंड बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्रेशन हो उस खाने में, क्योंकि वो बहुत प्यार से बना रहे हैं, तो आपको खा के एक अलग ही आनंद आने वाला है वो खाने के बाद। सो दिस इज समथिंग वी हैव टू ऑलवेज सी कि सक्सेस इज नॉट इन ऑल द वर्क दैट इज डन आउटसाइड, अ ह्यूज पार्ट ऑफ द सक्सेस इज इन हु वी वर इनसाइड while we were doing what we were doing outside. तो वाइब्रेशन वो है। तो सिर्फ ये हमें ध्यान रखना है एज एजुकेटर्स कि हम उससे ट्रबल्ड नहीं हो रहे, हम उससे डिस्टर्ब नहीं हो रहे, हम उसको रेजिस्ट नहीं कर रहे इस न्यू मैकेनिज्म को, हम बच्चों को डाउट नहीं कर रहे, हम अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं दिस इज द सिचुएशन, दैट्स इट, एंड हम शुक्रिया कर रहे हैं, अरे वाह शुक्रिया, कितने सारे टूल्स हैं। सोचो कुछ साल पहले अगर ये हुआ होता और ऐसे कोई टूल्स ना हुए होते तो 2 साल तो बच्चे पढ़ते ही ना। सो व्हाट, हाउ मच ग्रैटिट्यूड वी शुड हैव फॉर ऑल दीज टूल्स, कि कितना शुक्रिया हमें करना चाहिए। तो जब हम ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं तो हम एक्सेप्ट करते हैं, और अगर हम नहीं करते हम रेजिस्ट करते हैं, हम मेहनत करते हैं
लेकिन रेजिस्टेंस के साथ मेहनत करते हैं एंड डीप डाउन हम बिलीव करते हैं इससे तो बच्चों का फिर भी नुकसान ही हो रहा है, स्क्रीन टाइम तो बढ़ ही गया। बट वो बढ़ ही गया ना, बार बार क्यों सोचना है वो वाली बात, बार बार सोच के उसमें रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करनी। सो वी ओनली हैव टू टेक केयर। तो अगर टीचर्स भी हमारे सारे और पेरेंट्स भी हर रोज सुबह 10-15 मिनट भी मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल स्टडी करें, जिससे हमारा पावर ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ता है, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ता है। और पावर ऑफ एक्सेप्टेंस से माइंड की वाइब्रेशन चेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है, आपकी ऑरा में एक हैप्पीनेस आएगी, एक प्योरिटी आएगी, एक क्रिएटिविटी आएगी। वो ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। एंड अगर कोई आपके सामने ठीक से नहीं भी पढ़ रहा है, आप तब भी अंदर रेजिस्ट नहीं करने वाले, बोले इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, प्यार से उस बच्चे को फिर बुलाएंगे, फिर उसके साथ कुछ अच्छी सी बात करेंगे। नॉट रेजिस्ट। जितना हम रेजिस्ट करते हैं वाइब्रेशन डाउन होती है। तो अपनी वाइब्रेशन पर फोकस करें। हमारी स्थिति रेडिएट होती है, दूसरों की स्थिति पर असर करती है, लेकिन थोड़ा सा मेडिटेशन और स्पिरिचुअल स्टडी का टाइम जरूर अपने लिए डालिए। दीज आर टाइम्स टू स्टार्ट डूइंग इट, क्योंकि ये समय हमें मिला है, हम घर पर हैं, हम ट्रैवल नहीं कर रहे, तो उतना ट्रैवल वाला टाइम ही यूज कर लीजिए जो 15 मिनट ट्रैवल करना होता था। एंड इट यू विल स्टार्ट सीइंग अ शिफ्ट इन योर ओन सेल्फ एंड दैट शिफ्ट विल ट्रांसलेट टू एवरीबॉडी एल्स। उसका असर बच्चों पर पड़ेगा ही। जी, जब आप ये कह रहे हैं तो ये समझ में आता है कि हाँ, मैं अगर यहाँ से स्टेबल हूँ तो शायद मेरी वाइब्रेशनल एनर्जी जब मैं क्लास कराऊंगा या जब मैं लेक्चर दूंगा, जब मैं शुरुआत करूंगा कुछ चीज़ डिलीवर करने के लिए, तो बच्चों तक पहुँचेगा। और इसके लिए मैं यहाँ से अपने से ये शुरुआत करूँ, और अगर वो करता हूँ तो वो असर होता है। और मैं समझता हूँ हम सब लोग ये चीज़ कर सकते हैं एज एजुकेटर्स, और ये हमारे आसान पास है। एक जैसे हम रोज मुरली स्टडी करते हैं ना सेंटर्स पे, परमात्मा के महावाक्य, उसमें एक वाक्य बहुत पावरफुल है जो भी ऑलवेज रिमेम्बर। तो उसमें परमात्मा कहते हैं जो आप बनाते हो, मतलब जो भी आप करते हो, जो आप बनाते हो वो सोना है, हाँ, लेकिन जो आपकी स्थिति है वो उस सोने के ऊपर हीरा है, और वो हीरा ही सबको आकर्षित करेगा। तो जो बना रहे हो वो सिर्फ गोल्ड है, बट आपकी वाइब्रेशन जो स्थिति है वो डायमंड है, और वो डायमंड सबको अट्रैक्ट करती है। तो वो डायमंड पर फोकस करना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और जितना हम अपने इस स्थिति के हीरे पर फोकस करेंगे, उतना हमें उसका बेनिफिट दिखेगा। तो हम बच्चों को भी उस पर फोकस करना सिखा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस होगा फिर ही तो हम उनको सिखा सकते हैं। हम हो सकता है हर सेशन के स्टार्टिंग में, जैसे हम ब्रह्मा कुमारीज में करते हैं, हर सेशन का स्टार्टिंग और हर सेशन का एंडिंग हम एटलीस्ट 1 मिनट साइलेंस से करते हैं या 2 मिनट्स मेडिटेशन से करते हैं। उससे जो स्कैटर्ड माइंड भी होता है वो थोड़ा सा सॉर्टेड होके सेंटर्ड हो जाता है। तो वो भी अगर टीचर्स एक्सपेरिमेंट करके देखें, लेकिन उसके लिए उनकी अपनी कन्विक्शन चाहिए, वो कन्विक्शन ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो भी करके देख सकते हैं। जब आपने ये साइलेंस वर्ड कहा तो मेरे को अचानक याद आया, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे एक साइंस के टीचर थे। वो क्लास में आते ही ये नहीं कहते थे कि जैसे अक्सर होता है क्लासरूम में टीचर एंटर करते ही जोर से चिल्लाएंगे साइलेंस, चुप बैठो, तब सब लोग अपने अपनी कुर्सी पे वापस चले जाते थे। बट इस टीचर की आदत हमने देखी कि वो आते और क्लास में आके चुपचाप खड़े हो जाते। जैसे ही हम उनको देखते कि वो चुप खड़े हैं तो हम ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाते, और फिर थोड़ी देर बाद वो शुरू करते। मैं ये डिफरेंस नोटिस कर पा रहा हूँ कि ये कहना कि भाई चुप रहो, और खुद चुप रह के आप उस चीज़ को, एटमॉस्फेयर को साइलेंस से हम सबको वापस बांध लेना, जो हम स्कैटर हो गए थे उन सबको वापस रिकलेक्ट कर लेना, शायद हम अपने मन के साथ भी ये कर सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज में ये चीज़ की जाती है हर क्लास और लेक्चर से पहले, तो हमारे टीचर्स और एजुकेटर्स भी इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। व्हाट अ वंडरफुल टूल टू स्टार्ट विद। एब्सोल्युटली। जैसे आपने कहा कि हम एज एजुकेटर्स जब हम क्लास में आते हैं और हम बोलते हैं ना चुप करो, साइलेंस करो, अभी तो नहीं पता मुझे स्कूल में कैसे होता है, बट आई एम टॉकिंग 30 इयर्स बैक। तो टीचर आते थे तो इतना शोर होता था क्लास में, तो वो डस्टर लेके टेबल पे ठक ठक इतना जोर से, क्योंकि उनकी वॉइस भी उसको ओवरपावर नहीं कर सकती थी कि जो 40-50 बच्चों की आवाज होती थी, तो वो डस्टर से इतनी जोर से उसको ठोकते थे। अब कुछ बच्चे तो फिर भी नहीं लिसन करते थे, तो वो चौक उठाते थे और ऐसे जाके उस बच्चे को मारते थे। तो दैट वाज ऑल आवर मेथड ऑफ मेकिंग पीपल साइलेंट। लेकिन वो फिर सिर्फ साइलेंस यहाँ से होता था ना, यहाँ तो बहुत शोर मच जाता था।
लेकिन जैसे आपने कहा कि वो टीचर आकर साइलेंट होकर खड़े हो गए, बट दैट साइलेंस इज नॉट हियर ओनली, वो यहाँ साइलेंट खड़े हो गए। तो वो साइलेंस, वो एनर्जी सबको देता है, वो स्थिरता दूसरों को याद दिलाता है कि मुझे भी ऐसा स्थिर हो जाना है। तो शोर से साइलेंस नहीं क्रिएट किया जा सकता, साइलेंस से उनके अंदर साइलेंस क्रिएट किया जा सकता है। वाओ, ये कितनी पावरफुल स्टेटमेंट है कि हम शोर से आवाज करके साइलेंस नहीं क्रिएट कर सकते, साइलेंस से साइलेंस क्रिएट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक टेक होम टिप है दोस्तों कि हम सब इस पर काम करें, क्योंकि नई चैलेंजेस हैं तो उसको डील करने के नए तरीके हमें यहाँ भी इजाद करने पड़ेंगे अपने लिए, अपने मन के अंदर भी, ताकि हम इन चीज़ों को डील कर सकें। अब मैं एक और एस्पेक्ट पे जा रहा हूँ जहाँ पर अब हम रिलेशनशिप्स को देखें। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का रिलेशनशिप हमेशा ही एक बहुत ही भरोसे वाला रिलेशनशिप रहा है, और अक्सर बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर करते वो टीचर्स के साथ शेयर कर लेते, या फिर स्कूल जाते तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ वो चीज़ें शेयर करने लगते। अब वो चीज़ थोड़ा बदलने लगा है। अब टीचर्स के साथ ऑफ द क्लासरूम कोई चैट नहीं होती, कोई बातचीत नहीं होती, तो इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस नहीं होते, कॉरिडोर टॉक्स नहीं होते। वहाँ पर कुछ हमारे एजुकेटर्स ने ये बात रेज़ की है कि ऐसे में बच्चों के साथ जो हमारा रैपो है, जो हमारी बॉन्डिंग है, उसको हम कैसे बरकरार रखें, क्योंकि ओवर द ईयर्स उनको पता नहीं है कि कितने समय बाद ये चीज़ें वापस ठीक होंगी या वापस हम रेगुलर क्लासरूम मोड पे जाएंगे। बट इस दौरान हम उस रिलेशनशिप को मिस नहीं करें, वो बॉन्डिंग बनी रहे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये वो पूछते हैं। आई डोंट नो, क्योंकि मैंने देखा नहीं है ये लोग कैसे स्कूल्स के सेशंस हो रहे हैं आजकल, बट इट वुड बी अ गुड आइडिया ना कि बीच बीच में हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार आप एक सेशन में कुछ पढ़ाएं ना, जस्ट हैव अ चैट, सब लोग बातें करें कि क्या हो रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है, इधर क्या चल रहा है, अच्छा आपके घर में किसी को कोविड हुआ, कैसे हुआ, ठीक। सो लेट्स डेडिकेट हाफ एन आवर इन 10-15 डेज जस्ट टू टॉक। आपको रोज बात नहीं करनी पड़ती है किसी से एक रिश्ता बनाए रखने के लिए, यू डोंट हैव टू। अगर आप 15-20 दिन में भी एक बार सिर्फ एक इनफॉर्मल कनेक्ट करते हैं एंड यू से आज हम सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, दैट्स इट, लेकिन उस दिन आपकी स्ट्रेंथनिंग वो इतनी अच्छी हो जाएगी कि नेक्स्ट डे वो सिलेबस और जल्दी में कवर हो जाएगा आराम से, एंड सबकी एनर्जी भी चेंज हो जाती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट के बच्चे टीचर से बात करें, बच्चे सारे इकट्ठे भी तो मिल रहे हैं ना फिर उस तरह से, इट बिकम्स, बिकॉज ये तो बेनिफिट है इन प्लेटफॉर्म्स का कि एटलीस्ट यू फील कि हाँ आपने सबको देखा, आप सबसे मिले, सबसे आपने बात की, तो इट्स द नेक्स्ट बेस्ट नो टू मीटिंग अ पर्सन इन अ फिजिकल वे। और जहाँ की कनेक्टिविटी की बात होती है, रिश्ते तो यहाँ बनते हैं, रिश्ते तो यहाँ बनते हैं। अगर हम चाहें तो एक ही कमरे में बैठकर हम एक दूसरे से बहुत दूर हो सकते हैं, क्योंकि हम मन में कनेक्ट ही नहीं हो रहे एक दूसरे के साथ। एंड अगर हम चाहें तो दो अलग अलग देशों में रहकर बहुत क्लोज कनेक्टेड हो सकते हैं। तो रिश्ता जो है वो फिजिकल मीटिंग पर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो तो हमारी एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट। अगर टीचर बात करती भी हैं, हंसते भी हैं, बच्चे भी हंसते हैं, बात करते हैं, लेकिन अगर बच्चे या टीचर एक दूसरे के प्रति क्रिटिकल है माइंड में, जजमेंटल है माइंड में, डाउट कर रहे हैं, तो रिश्ता नहीं बनता है, वो तो सिर्फ एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन बनती है। कॉन्वर्सेशन एंड रिलेशनशिप दोनों चीजों में तो बहुत फर्क हो जाता है। वो तो हाँ चलो हमने बातें कर ली, रिश्ता, रिश्ता एक स्ट्रॉन्ग चीज होती है जहां देयर इज अनकंडीशनल ट्रस्ट, के मतलब ये कुछ मेरे लिए गलत बोल ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, तो वो हमें क्रिएट करना है। तो इसलिए जितना हम मेडिटेशन करके अपने माइंड को साफ रखते हैं, हमारा पावर ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ता है, उतना हमारे जो थॉट्स होते हैं ना किसी के लिए, वो साफ होने लग जाते हैं, प्योर थॉट्स, प्योर थॉट्स। सो विच मीन्स हम वो नहीं सोचेंगे जो वो हैं। मतलब अगर कोई आपका स्टूडेंट थोड़ा सा मिसचीवियस भी है, कुछ गलतियां भी करता है, कोई आपका स्टूडेंट झूठ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी करता है, संस्कार है। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर ऑनलाइन, दिस इज इवन व्हेन वी आर फिजिकली इन द स्कूल टुगेदर। हमें उनके बारे में वो हायर एनर्जी थॉट्स क्रिएट करनी है जो हम चाहते हैं कि वो बन जाए, कि नहीं ये बहुत पावरफुल बच्चा है, ये बड़ा डिसिप्लिन्ड बच्चा है, ये हॉनेस्ट बच्चा है। मतलब हमारी थॉट्स
भले मुख से आपको उनको डिसिप्लिन भी करना है, अगर कोई झूठ बोल रहा है आपको उनको बोलना है कि ये नहीं है, वो आप यहाँ से डिसिप्लिन तो करना है, लेकिन यहाँ से हमेशा ब्लेसिंग्स दें। पावर ऑफ ब्लेसिंग्स हमारे रिश्तों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। एंड ब्लेसिंग्स मतलब उनकी विशेषताओं को देखें और उनकी जो वो चीज है जो ठीक नहीं है आदत, उसके लिए भी एक हाई वाइब्रेशनल थॉट क्रिएट करें। ये थॉट क्रिएट करें तो आपसे जो एनर्जी एक बच्चे को मिलेगी, तो बच्चा भी एक जीवन जीने का तरीका सीख जाएगा कि इन स्पाइट ऑफ माई थिंग्स आई एम नॉट गेटिंग नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम हर और हिम, उसको बड़े अच्छे वाइब्रेशंस मिलेंगे आपसे। रिश्ते उस पर बन जाते हैं और यही रिश्ते हम उसके बाद कॉलेज चले जाएं, हम यूनिवर्सिटी चले जाएं, हम अपने करियर में कहाँ के कहाँ चले जाएं, कोई भी हमें पूछता है कि आपको कौन से टीचर याद हैं अपने स्कूल के, तो वो कौन से टीचर याद होते हैं? वो टीचर नहीं होते जरूरी जिन्होंने वो सब्जेक्ट बेस्ट पढ़ाया होता है, तो सब्जेक्ट ही याद नहीं होता, सब्जेक्ट कैसे पढ़ाया था वो भी याद नहीं होता, वी आर टॉकिंग 10-20 इयर्स लेटर। लेकिन हमें वो टीचर्स याद होते हैं जिनके साथ हमारा वो कनेक्ट, लेकिन वो उनके साथ ही ऐसा कनेक्ट क्यों बना हमारा? व्हाई वाज इट नॉट द सेम विद एवरीबॉडी? क्योंकि वो हमारे बारे में कैसा सोचते थे अंदर, हमारा रिश्ता उसी पर बनता है। तो दिस इज द पावर वी हैव। इसलिए चेकिंग यहाँ थोड़ी सी करनी चाहिए। अगर हर एक टीचर हर एक बच्चे के लिए, पेरेंट हर बच्चे के लिए इस तरह से करे और बच्चों को भी फिर इस तरह से करना सिखाएं। सपोज बच्चा अपनी टीचर की शिकायत करता है, ये भी एक नई चीजें होने लगी हैं आजकल। पहले जब हम स्कूल में थे तो हम तो डरते थे अपने टीचर से, मतलब, और हमारे पेरेंट्स भी एक्चुअली डरते ही थे टीचर से। डरते मतलब इट वॉज नॉट फियर बट इट इज अ रिगार्ड, इट इज अ रिस्पेक्ट कि नहीं वो टीचर है, वो मेरे बच्चे की टीचर है। इट वाज लाइक दैट कि टीचर के साथ किस तरह से बात करते हैं। तो टीचर को एक बहुत ऊंचा नजरिया, एक बहुत ऊंचा पेडेस्टल रखा गया था, विच इज रियली नीडेड बिकॉज दे आर मोल्डिंग द चाइल्ड, दे आर मोल्डिंग द लाइफ ऑफ योर चाइल्ड। आजकल तो स्टूडेंट ही शिकायत कर देते हैं टीचर की और फिर पेरेंट भी स्कूल आ जाते हैं कि मेरे टीचर ने मेरे बच्चे के साथ इस तरह से बात कैसे की। So we are then doing something which is not healthy for the child. वो तो वो बच्चे के लिए अच्छा ही नहीं है। तो अगर आपका बच्चा अपनी टीचर की शिकायत करता भी है, वो ऐसे करती हैं, वो ऐसे है या वो ऐसे है, पेरेंट का रोल है उस शिकायत के सर्कल में एक्सेप्ट करके उसमें इंटैंगल ना हो जाना और बच्चे की हाँ में हाँ नहीं मिलाना। आपको बच्चे के सोचने के तरीके को चेंज करना है कि नहीं ये है तो 10 चीजें और भी अच्छी हैं, लेट्स लुक एट ऑल द गुड साइड, लेट्स वी हैव टू टीच द चाइल्ड हाउ टू थिंक। उनको इनकरेज नहीं करना जब वो अपने टीचर के अगेंस्ट बोल रहे हो, क्योंकि वो जीवन जीने का तरीका सीख रहे हैं, वो रिश्ते बनाने का तरीका सीख रहे हैं। तो ये पेरेंटल एंड टीचर दोनों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो बच्चों को सही सोचने का तरीका सिखाएं। वाह, कितनी खूबसूरत बात है। इससे ये पता चलता है कि ये जो चैलेंज हम आज फेस कर रहे हैं, ये भी एक्चुअल में एक अपॉर्चुनिटी है। हम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सिर्फ अपने नज़रिए को बदल कर। और इस बातचीत के दौरान इतनी खूबसूरत सी चीज़ें निकल कर आई हैं ताकि हम सब अपने लिए कुछ काम करें, खुद अपने लेवल पे, हम अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ काम कैसे करें, पेरेंट्स क्या करें अपने बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, एजुकेटर्स क्या करें। सभी के लिए बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई और जो चैलेंजेस हमारे पास हैं उसको इफ़ेक्टिवली हम अपॉर्चुनिटीज़ में चेंज कर सकते हैं, सिर्फ फिज़िकल लेवल पर ही नहीं, जो अदरवाइज़ भी है वो हम अपने थॉट लेवल पर जाकर बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी कि आज आप हमारे साथ जुड़े और हमारे एजुकेटर्स से बातचीत की, और जो कुछ भी हमारे साथ ही सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सभी कुछ ना कुछ ले जा रहे हैं और कल से मैं समझता हूँ आज से ही वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और उन चीज़ों को प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू सो मच। जैसे आप ये बात कह रहे थे कि हर चीज़ की शुरुआत में और एंड में मेडिटेशन के साथ करने से हम एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एक अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। हम सभी भी ऑनलाइन ही देख रहे हैं, टीवी पर या इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर इन प्रोग्राम्स को देख रहे हैं। तो जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट 4-5 मिनट्स के लिए आप भी हम सबको एक मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस में ले जाएं ताकि हम सब इसको प्रैक्टिकली करना सीख लें और हम हर दिन इस चीज़ को कर सकें। थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठें। 3 times inhale, exhale, body relax.
एंड फिर जेंटली अपनी अटेंशन को यहाँ पर लेकर आइए, सेंटर ऑफ द फोरहेड। ये एनर्जी सेंटर है। और वहां पर बहुत धीरे से विजुअलाइज कीजिए एक पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे एक सितारा, अ स्टार। कोई प्रेशर नहीं, बहुत धीरे धीरे हो जाएगा, दिखाई देगा। और उसको देखते हुए जेंटली हम ये थॉट्स क्रिएट करेंगे। आप सुनते सुनते इनको अंदर रिपीट कर सकते हैं स्लोली, और इसको विजुअलाइज भी कीजिए। I am a powerful being. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। फील कीजिए इस एनर्जी को। I am a powerful being. शक्तिशाली। जीवन की हर सीन बस एक सीन है। मैं शक्तिशाली हूँ। हर सीन, हर सिचुएशन उसके साथ अडैप्ट करने की, उसे एक्सेप्ट करने की, उसे अंडरस्टैंड करने की, और उसमें सॉल्यूशन ढूंढने की शक्ति मेरे अंदर भरपूर है। इट्स माय नेचर। हर सीन जो आई है इसमें मेरा कल्याण है। ये सीन मेरे बेनिफिट के लिए है। I'm coming out stronger from this scene. मैं इस सीन को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ। मैं हर एक को एक्सेप्ट करती हूँ। मेरा मन शांत और स्थिर है। जीवन की हर सीन परफेक्ट है। हर सीन परफेक्ट है। Every scene of my life is perfect. Om Shanti. ओम शांति। थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी दोस्तों से बातचीत करने के लिए जिन्होंने इस कॉन्वर्सेशन में उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले हैं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिवानी बहन जी का। आप हमको बहुत ही सुंदर यात्रा पर लेकर गए। अंतर जगत की ऐसी यात्रा जहाँ शांति की अनुभूति करना बहुत सहज और स्वाभाविक हो जाता है। सिर्फ आवश्यकता है कि हम स्वयं को पहचानें, अपनी शक्तियों को पहचानें और उन्हीं शक्तियों को अपने कार्य क्षेत्र पर लेकर आएं। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर आर.पी. गुप्ता जी,
जो अपना धन्यवाद सत्र हमारे साथ रखेंगे। डॉक्टर आरपी गुप्ता जी हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स के, और शिक्षा प्रभाग की कई सेवाओं में आप बहुत आगे बढ़ के सेवाएं देते हैं। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज की एजुकेशन विंग की तरफ से 2 दिन 26 और 27 जून को इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य थीम था होलिस्टिक एजुकेशन फॉर एक्सेलेंस इन लाइफ। इसको 4 विषयों में बांटा गया और 4 ही टॉक शो का आयोजन किया गया जो अपने आप में यूनिक थे। इसमें न केवल देश के बल्कि विदेश के शिक्षाविदों और एमिनेंट स्कॉलर्स ने भाग लिया। हम सबसे पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं जिनकी प्रेरणा से यह कॉन्फ्रेंस निर्विघ्न संपन्न हुई। ऑनरेबल श्रीमती अनुसुईया, गवर्नर छत्तीसगढ़, आप बहुत ही निर्माणचित हैं। हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे एक शॉर्ट नोटिस पर आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। ऑनरेबल श्री विश्व भूषण हरिचंदन, गवर्नर आंध्र प्रदेश, आप भी बहुत ही निर्माणचित हैं, सरल स्वभाव है। हम आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने भी अपना संबोधन दिया। प्रोफेसर डीपी सिंह, चेयरमैन यूजीसी, हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परम आदरणीय राजयोगी बीके मृत्युंजय भाई जी का, जो न केवल एजुकेशन विंग के चेयरमैन हैं बल्कि ब्रह्मा कुमारीज के भी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं। आप न केवल खुद उमंग उत्साह में रहते हैं बल्कि दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलवाते रहते हैं। बहुत सारी विशेषताएं आपके अंदर हैं, लेकिन जो 3 विशेषताएं विशेष रूप से मैंने आपके अंदर देखी, डेडिकेशन, डिवोशन एंड फर्म डिटर्मिनेशन। इस एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने में और उसका आयोजन करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे मोटिवेशनल स्पीकर राजयोगिनी बीके शिवानी दीदी एवं बीके ईवी ग्रीस भाई, आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके वक्तव्य ने सभी का दिल जीत लिया। विदेश के भाई बहनों ने भी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, जिनमें से कुछ का मैं नाम लेना चाहूँगा। राजयोगिनी जयंती बहन, राजयोगिनी सुदेश दीदी, राजयोगिनी संतोष बहन, सिस्टर अरेना, सिस्टर जैना, सिस्टर गोपी एवं ब्रदर चार्ली, आप सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माउंट आबू से राजयोगिनी सीलू दीदी, राजयोगिनी उषा दीदी एवं सुमन बहन, आपने भी अपने विचार इसमें रखे और टॉक शो के माध्यम से समस्या का समाधान किया। आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें अगर हम शिविका बहन, सुप्रिया बहन, बुरहान भाई, गौरव भाई और चुनेश भाई का शुक्रिया अदा ना करें तो ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि आप सभी ने
इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने में जी जान लगा दी, दिन रात एक कर दी, तो हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे भाई प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने में लगे हुए हैं। हम उन सभी का भी जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसमें सहयोग दिया है, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। डॉक्टर आरपी गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो ये पिछले 2 दिन हमारे साथ जुड़े रहे। हम आशा करते हैं कि इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में आपको विभिन्न टॉपिक्स पर चिंतन करने का मौका मिला होगा, उसकी गहराई में जाने का मौका मिला होगा। और अगर इस कॉन्फ्रेंस की सफलता को देखें तो ये तभी है जब आप सभी अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लेके आते हैं। जो सुंदर बातें, जो सुंदर विचार आपने सुने हैं, वो ना सिर्फ आप अपने जीवन में लेके आते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी सुंदर बनाते हैं। और आशा करते हैं कि ये यात्रा आगे भी चलती रहेगी। इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए 1 से 7 जुलाई तक हम आपके साथ ला रहे हैं सेल्फ एम्पावरमेंट सेशन, जिसका टाइटल है राजयोगा एज अ लाइफस्टाइल। 1 से 7 जुलाई 2021 तक ये कार्यक्रम 6 बजे से शाम के 7 बजे तक रहेगा। जो भी ये कार्यक्रम अटेंड करना चाहते हैं वो हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं 7597545115, या हमको आप ईमेल भी कर सकते हैं educationwing@bkivv.org। ओम शांति, धन्यवाद, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।